اس ناول کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ کمرے کا جائزہ لیتی ایک بار پھر احساس کمتری کا شکار ہوئی تھی۔ ایک سنگل بیڈ، پرانا سا ادھڑا ہوا ایک صوفہ، اس کے آگے رکھی بری طرح چٹکتی ہوئی ٹیبل، ایک الماری جس میں اخبار اوپر سے نیچے تک ٹھونسے گئے تھے، ایک آئینہ دیوار پہ لگا تھا جس کے عین نیچے اوپر تلے رکھی 3 چھوٹی پیٹیوں پر چھوٹا سا ٹی وی رکھا تھا، اور بس آدھی سے زیادہ دیواروں سے چورنا جھڑ چکا تھا، باقی بھی اترنے کو بے قرار لگتا تھا۔ چھت پر لگے بڑے بڑے جالے الگ، مجھے آج ہی یہاں سے جانا ہے، کبھی واپس نہیں آنا ہے۔ ایک بار پھر دل میں ارادہ کرتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ اس وقت حواس باختہ سے ہو کر کچن سے باہر نکلی تھی جب کچھ دھڑام سے گرنے کی آواز آئی تھی۔ آپ کیسے گر گئے؟ ٹھیک تو ہیں آپ؟ اسے زمین پر گرا دیکھ کر اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی، اب بالکل ہی رو دینے کو ہو گئی تھی وہ۔ بخار ہو رہا ہے یار، زحمت نہ ہو تو اٹھنے میں مدد کر دو، کانٹے نہیں ہو گئے مجھ میں۔ گہری گہری سانسیں لیتے بمشکل بول رہا تھا۔ بخار ہو رہا تھا، باہر کیوں آئے تھے؟ تمہاری خوشبو کھینچ لائی تھی، نکاہت زدہ آواز میں کہتا اپنا سارا بوجھ اس پہ چھوڑ چکا تھا۔ گرتے گرتے اس نے مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ کیا آپ بے ہوش ہو چکے ہیں؟ تمہارے قرب میں ہوش میں رہ سکتا ہوں میں؟ بخار دماغ پہ چڑھ گیا ہے شاید۔ اسے بستر پر ٹھیک سے لٹا کر کمبل بھی اس پہ ڈال چکی تھی۔ کچھ کھائیں گے آپ؟ داؤد کا شانہ ذرا سا ہلا کر اس نے پھر پوچھا تھا۔ تمہیں؟ آنکھیں پھیلا کر خولا نے دوسری طرف لڑ کے اس کے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، انہوں نے کہا ہے یہ میرے کان بجے ہیں۔ اس شخص کا ویسے کوئی حال نہیں۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بہت ہی پیارا سا ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں، ناول کی شروعات کرتے ہیں۔ پاستہ باؤل میں منتقل کرتے ہوئے ہلکے ہلکے تھرک بھی رہا تھا۔ ٹی وی پر فل والیوم میں اس کا من پسند انگلش گانا چل رہا تھا، جس کے باعث کمرے میں چنگھاڑتے فون کی آواز وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ زیر لب گانے کے بول دہراتا وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوا، مٹی چائے کے دھبوں کے نشانات سے بھری ٹیبل پر دھرے موبائل کی جگمگ کرتی اسکرین نے اس کی ساری توجہ کھینچ لی۔ کال کرنے والے کا نام پڑھتے کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں اتنی ابلی کہ بس گرنے کی کسر رہ گئی۔ اللہ خیر کرے، یہ میری گناہ گار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ سبحان سعید، اور مجھے کال؟ ابھی اس کی حیرت ختم نہ ہوئی تھی کہ کال کاٹ کے پھر سے کر دی گئی۔ گہری سانس بھر کے اس نے دل ہی دل میں سب خیریت ہونے کی دعا کی تھی، کیونکہ سبحان صاحب نے 26 سال کے عرصے میں اسے صرف 3 بار کال کی تھی۔ ایک بار جب معاذ سارا دن گھر نہیں آیا تھا، دراصل وہ سبحان صاحب سے ناراض ہو کر اپنے دوست کے گھر چھپا بیٹھا تھا۔ دوسری بار جب اس کی نانی کا انتقال ہوا تھا۔ تیسری بار جب معاذ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ اس سے تب بھی رابطہ ہرگز نہ کرتے اگر معاذ کو خون کی اشد ضرورت نہ ہوتی اور اس کا بلڈ گروپ میچ نہ ہوتا۔ جی، نہ سلام نہ دعا، پتھر مارسا جی۔ ان کا بگڑا ہوا چہرہ مزید بگاڑ گیا۔ مگر وقت پڑنے پر گدھے کو باپ بنایا جا سکتا ہے تو بیٹا ہی بنایا جا سکتا ہے۔ بیٹا نہیں، دولہا۔ دل ہی دل میں بڑبڑاتے اپنی ناگواری چھپاتے گویا ہوئے، آج ارباز کی شادی ہے۔ اب آپ سمیت سب کنفیوز ہوں گے کہ دولہا کون ہے۔ ارے بھائی، کہا بھی تھا میں نے، گھوڑوں کا دور گیا اب، مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ اوپر سے گھوڑے کو بھی کیسا سجا بنا دیا۔ اب سوچتے رہیں ان میں سے آپ کا لاڈلا کون ہے؟ اوہو، معاذ کے پاپا۔ جو زیادہ خوبصورت لگ رہا ہو وہ گھوڑا ہوگا۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا، جو سوار ہوگا وہ دولہا ہوگا۔ نان سٹاپ اناپ شناپ بک کر اب وہ مصنوعی کہکہے لگاتا حقیقی کھانسی کا شکار ہو چکا تھا۔ قریب دھری پانی کی بوتل سے منہ لگا کر پانی پیتے ہوئے دوسری طرف سے مسلسل خاموشی پر سچ مچ اچھی خاصی تشویش کا شکار ہوتا ٹی وی آف کر چکا تھا، جس کی آواز پہلے میوٹ کر دی تھی۔ موڈ بہت اچھا تھا، سو گڑبڑ کا احساس ہوتے ہوئے بھی فضول گوئی سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ ایک ہی کام تھا جو مستقل مزاجی سے کر سکتا تھا، وہ تھا سبحان صاحب کا دماغ خراب کرنا۔ یہ رائے جویریہ بیگم کی تھی، جبکہ اس کا ماننا تھا کہ سبحان صاحب کے پاس دماغ نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی، دلہن تو نہیں بھاگ گئی؟ کچھ پل ان کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد اس نے اپنا خدشہ ظاہر کر ڈالا۔ دلہن نہیں، دولہا بھاگ گیا۔ دھیمی نسوانی آواز پر ایک پل کو سٹپٹایا تھا۔ اماں؟ ان کی روحان سی آواز پر اس کی بچی کھچی شوخی بھی اڑن چھو ہوئی تھی۔ کیا بات ہے اماں؟ دولہا بھاگ گیا ہے۔
उन्होंने भींची सी आवाज़ में चीख कर अपनी बात दोहराई। सुनकर भी वो समझ नहीं पा रहा था, बस मुंह खोले उनकी बात हजम करने की कोशिश करता रहा। सुना तुमने? वो झुंझलाई थी। सामने खड़े सुभान साहब इन्हें मुद्दा जल्दी बयान करने के इशारे कर रहे थे। सुन तो लिया, समझ नहीं पा रहा। ख़ुद को इस वक्त काफ़ी बोंगा महसूस कर रहा था। पछतो नहीं बोली मैंने। सुभान साहब तिल मिला कर बोले, फजूल वक्त ज़ाया ना हो, इसलिए इसकी बकवास के दरमियान ही वो फ़ोन इन्हें थमा चुके थे। लेकिन जवेरिया बेगम कुछ और भी कहने वाली थी, मगर उन्होंने फ़ोन अपने कान से लगा लिया था, जबकि मोबाइल अब भी हाथ में ही उनके था। वो नाउमर दोशीज़ा की तरह परेशान सी हो गई। आसपास चोर नज़र डाली, तकरीबन सब ही उनकी जानिब मुतवज्जा थे, मगर वजह कुछ और थी। शर्मिंदा सी वो अपने शौहर की जानिब मुतवज्जा हुई थी। एक ही सांस में इसे सूरत-ए-हाल समझाते दुल्हन के घर पहुंचने की इल्तिजा भी कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जल्दी जल्दी जोगर्स के तस्मे बांधता वो ना कि सिर्फ इनकारी हो रहा था, बल्कि सूरत-ए-हाल पर लतीफ़े भी बना बना कर पेश कर रहा था। दाऊद, तुम्हारे हो या नहीं? बुरी तरह अजिज़ा कर वो दहाड़े थे। जवेरिया बेगम ने घबरा कर फिर से इतराफ़ में नज़रें दौड़ाईं। अगले पल बेजारी से सर झटक गई। जितना तमाशा बनना था, सुभान सईद का अपना बेटा बनवा ही चुका था। बाइक पर बैठते हुए कतियत से गोया हुआ था, नहीं, और अगले ही पल फ़ोन ऑफ करके जैकेट की जेब में डालकर बाइक स्टार्ट कर चुका था। हाँ, मैं ही पागल था, इससे उम्मीद लगा बैठा। मेरा अपना बेटा, मेरा गरूर, मेरे सर में खाक डलवा क्या, नाक कटवा क्या, मेरा मान तोड़ क्या, मुझे हुआ क्या है? जवेरिया बेगम की बेजारी से टोकने पर उन्होंने भी नागवारी से घूरते हुए इस्तेहज़ाइया अंदाज में इसका इनकार उनकी गोशो गुजार कर दिया। तुम्हें शौक़ हुआ था अपने लाडले के सामने मुझे शर्मिंदा करवाने का। पहले कभी इसने मेरे रिश्ते ना सही उम्र का भी लिहाज किया है, जो अब मेरी पुकार पे भागा चला आता। मज़े ले रहा था कमीना। मैं तो वो आता ही होगा। आप जलाल साहब को संभालिए, मैं ज़रा तहमीना बहन को देखाऊँ। मगर उसने इनकार कर दिया। सुभान साहब के बिगड़ कर टोकने पर बड़े अंदाज से पलटी थी। जब इसकी माँ कह रही है कि वो आ रहा है तो मतलब आ रहा है, अब आप मुतमईन हो जाएं और खौला के ताया और चाचा को ही मुतमईन करें। उनके इशारे पर सुभान साहब ने गर्दन घुमाई। जलील और रोहेल साहब बिगड़े तेवरों के साथ उन्हीं की तरफ आ रहे थे। एक नज़र ख़वातीन के लिए मखसूस कमरे की तरफ बढ़ती बेगम की पुश्त पर डालकर गहरी सांस खारिज करते अल्फाज तरतीब देने लगे। हैं, क्या मेरे सर पर सींग निकल आए हैं? जो ही इसने घर के मुख्तसर से सहन में कदम रखा, तमाम की तमाम गर्दनें इसके और घूमी थी। कई चेहरों को वो जानता था, कई अनजान थे, मगर उनका इस तरह देखना, फिर एक दूसरे के कान में घुसकर भिन भिनाना, बिला वजह बालों में उंगलियां चलाने लगा, ये इसकी उलझन का इजहार था। आ गया मेरा बेटा। बुरी तरह उछल कर वो मुड़ा था। दाएं बाएं पीछे देखकर इसने हवन्नक सी शक्ल बना के सुभान साहब को देखा था, और इस वक्त तो बस मर जाने वाला हो गया था जब उन्होंने बज़ाहिर इसे सीने से लगाकर दर हकीकत बुरी तरह भींच लिया था। वो ऊंचा लंबा हट्टा कट्टा जिस हद तक भी उनके मेहनी से बाजुओं में समा सका समा गया। सुभान सईद इसे किसी तौर छोड़ने को तैयार ना हुए। पीछे से वो दो स्पाट चेहरों वाले हजरात गले खनकार खनकार के इन्हें मुतवज्जा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो जिससे इन्हें कतई उम्मीद नहीं थी उनकी नाक का रखवाला बनकर आया था। वो यकीन बेयकीनी और सरखुशी के आलम में इससे चिपके रहे। सुनिए, खनकार खनकार के बेजार हो जाने वाले जलाल साहब ने पुरजलाल अंदाज में पुकारा तो कदरे उछल कर पीछे हुए थे। हंसते हुए उन्होंने झिलमिलाती नज़रों से इसे देखा था, जबकि दाऊद को इस झिलमिलाहट व रफ्तगी से खौफ महसूस हुआ था। बेसाख्ता पीछे हटता वो भाग जाना चाहता था कि भाई भाई चीखता मांस और सदके वारी होती जवेरिया बेगम दौड़े चले आ रहे थे। बस लड़का हाजिर है जलाल साहब, निकाह की तैयारी कीजिए। सीना फुलाए सुभान साहब की मुस्कुराहट देखने वाली थी। हमारी तरफ से तो तमाम तैयारियां पूरी हैं। हाँ, जलाल साहब पे लगता था उनके नाम का पूरा असर हुआ था। ये सब क्या है? सदमाती नज़रों से जवेरिया बेगम को घूर रहा था, जो इसकी तरफ देखने से मुकम्मल इज्तनाब करती इसके शर्ट के ऊपरी बटन बंद कर रही थी। इसका ख्याल था शायद इसे अरबाज को ढूंढने के लिए दौड़ाया जाएगा। यहाँ तो इसकी कुर्बानी की तैयारी की जा रही थी। अम्मी, मैं कोई नौमल दोशीज़ा नहीं हूँ, ख़ानदान वालों की इज्जत के लिए अपनी कुर्बानी दे दूँ। उनके हाथ झटक के बुरी तरह भिन्न आया था, मगर वो बेचारी बहुत मासूम सी बच्ची है।
अगर तो उन्हें ज़रा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो इसे सारी ज़िंदगी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिसके बाद मुझे मेरा ज़मीर कभी सुकून नहीं लेने देगा। वो गंजा देख रहे हो इसकी ताई का भाई है, जवान बच्चों का बाप है। तुम नहीं करोगे तो लड़की के ताए शख्स इस बच्ची को ब्याह देंगे। बेचारी यतीम मस्कीन बच्ची, माँ इससे बढ़कर सीधी कुछ कर भी नहीं सकेंगी। वो माँ बेटी सिवाय सब्र के, और सब्र के दौरान अगर उनके दिल से कोई आह निकल गई तो मुझे इस आह से डर लगता है। सचमुच बहुत हसास हो रही थी, जबकि वो अदम दिलचस्पी से उन्हें सुनता आंखों ही आंखों में सुभान साहब को कुछ चैलेंज कर रहा था। सब्र की आखिरी हद पर पहुंचे सुभान साहब जबरन मुस्कुराते रहे, सर हिलाते रहे, जबकि इन दोनों की आंखों की गुस्ताखियां मुलाहिजा करता मास दिल की गहराई से सब खैरियत से हो जाने की दुआएं कर रहा था। आइए। रोहेल साहब कुछ लोगों को साथ लिए उनके सर पे पहुंचे थे। गहरी सांस खारिज करके दाऊद ने इन तीनों की पुरुम्मीद नज़रों को देखा, फिर लाचारी से दोनों हाथ उठा के रजामंदी देती। क्या आपको खौला बिनते कमाल लगारी हक महर बाइवस 50,000 कबूल है? हाँ जी कबूल है। जवाब दो खौला। मौलवी साहब के दूसरी बार पूछने पर भी जब घूंघट के इस पार खामोशी ही रही, अम्मारा बेगम का दिल बैठने लगा। खौला। एक हाथ से नरमी से उसकी पुश्त सहलाते, दूसरा हाथ उन्होंने इसके सजे संवरे एक दूसरे में जकड़े हाथों पर रखकर इसकी हिम्मत भी बंधाई थी, इससे इल्तजा भी की थी। टिप 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 कई आंसू एक साथ इसकी माँ के बूढ़े हाथ की पुश्त पर गिरे थे, उन्हें अपने दिल पर गिरते महसूस हुए थे। बस मेरी बच्ची, सब ठीक हो गया है। इसका सर अपने सीने से लगाती जवेरिया बेगम के लहजे में कुछ ऐसी हलावत थी। कदरे संभलते हुए इसने अपने सर को आहिस्तगी से इस बात में जुम्बिश दी थी। मौलवी साहब ने फिर से अपना सवाल दोहराया था। कबूल है। मुबारक सलामत के शोर में इसकी सिसकियों की आवाज़ें दब चुकी थीं। कोई इसे इस तरह भी रिजेक्ट कर सकता है? एंड शादी के दिन रिजेक्ट कर गया, इसे छोड़ के भाग गया। यह गम इसे शदीद किस्म के एहसास कमतरी का शिकार कर रहा था। गाड़ी में मौजूद चारों नफोस अपनी अपनी सोचों में गर्क थे। ड्राइव करता माज वक्तन फ़वक्तन रहम भरी नज़रें फ्रंट मिरर से दुल्हन पे डाल लेता। जवेरिया बेगम मुस्तकिल खौला को अपने साथ लगाए आहिस्ता आहिस्ता इसके शानों को थपक रही थी। सुभान साहब शर्मिंदगी के बाइस खौला की तरफ देखने से मुकम्मल गुरेज कर रहे थे, जबकि खौला के दिलो दिमाग बिल्कुल जामिद थे। दफ़ातन सेल फ़ोन की चिंगाड़ती आवाज़ पर सभी बदमज़ा से होकर जवेरिया बेगम की तरफ मुतवज्जा हुए थे, जो बिला वजह शर्मिंदा होती कॉल रिसीव कर चुकी थी। गाड़ी रोकिए। दूसरी तरफ मौजूद दाऊद की आवाज़ इतनी गरजदार ज़रूर थी कि जवेरिया बेगम से लगी बैठी खौला का दिल बुरी तरह दहल गया था। क्या? क्यों? आपका मकसद पूरा हो गया ना? अब मुझसे सवाल जवाब मत करें और मेरी दुल्हन मेरे हवाले करें। उनकी गाड़ी से आगे अपनी बाइक दौड़ाता बुरी तरह भन्ना रहा था। अरे मगर कुछ सोच कर जवेरिया बेगम चुप सी हो गई। मास को गाड़ी रोकने को कहा। हैरान परेशान सा मास गाड़ी रोककर तनफन करते दाऊद को गाड़ी के करीब आता देख रहा था। क्या बात है? सुभान साहब ने बुरा सा मुँह बना के पूछा था। जवाबन दाऊद ने उनसे ही बुरा मुँह बनाकर उन्हें नज़रअंदाज करके तपा दिया था। उतरो, चलो। अरे ये क्या कर रहा है? अपनी दुल्हन को अपने साथ अपनी बाइक पे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करता वह इन तीनों को हक्का बक्का छोड़कर खौला का हाथ थामे कुछ फासले पर खड़ी अपनी बाइक की तरफ बढ़ चुका था, जबकि हरासा होती खौला मुज़ाहमत शुरू कर चुकी थी। ठिठक कर रुकता दाऊद इस सहमी हुई सी लड़की का हाथ नरमी से छोड़ चुका था। हाँपती कांपती सी दौड़ी आती जवेरिया बेगम ने फिर इसे बाजों के हल्के में ले लिया था। खा नहीं जाऊंगा मैं इसे, तुम्हारा कुछ भरोसा भी नहीं। शादी मेरी क्यों करवाई है जब साथ लगाकर आपको रखना था? वो तो जज्बात में आकर कुछ भी कह गया था। सियाह शाल में गुमसुम खड़ी खौला का दिल बड़े बेसाख्ता अंदाज में एक अलग ही रिदम पे धड़क उठा। ओह! माज और जवेरिया बेगम की मायने खेज नज़रें एक दूसरे से टकराई थीं। तो सारा गुस्सा इस बात का है कि साथ लगाकर अम्मी ने क्यों रखा है? माज ने लहक लहक कर कहने के बाद माँ के पीछे पनाह ली थी, जबकि वो अपने जुमले की गहराई का अंदाज़ा होने के बाद शर्मा सा गया। मैं जा रहा हूँ, रखिए आप अपनी बहू रानी को अपने कलेजे से लगाकर। बाइक संभालता स्टार्ट करने लगा था। जवेरिया बेगम ने झटपट खौला को घसीट कर इसके पीछे बिठा दिया। ये सब इतना अचानक था कि वो दोनों ही अपनी अपनी जगह थम से गए थे। बहुत संभल कर एहतियात से बैठना खौला, इस लड़के का दिमाग बिल्कुल ख़राब है। जितना मैं इसे गाड़ी में बैठने को कहूँगी इतना ज़िद में आएगा।
اس کے لہنگے اور دوپٹے کو سمیٹتی وہ خولہ سے مخاطب تھی، جبکہ نظریں اسی پر تھیں۔ سنسان تاریک راستے پر نظریں جمائے ہوئے بیٹھا تھا۔ آیت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونکتی وہ تب تک انہیں دیکھتی رہی جب تک وہ نظر آتے رہے۔ ان کے اندھیرے میں اوجھل ہو جانے کے بعد انہوں نے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے جہاں بیٹھے سبحان صاحب بری طرح پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، ارباز اپنے باپ کو اس طرح بھری برادری میں شرمندہ ہونے کے لیے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ رشتہ طے ہونے کے بعد سے آج تک کے عرصے میں ایک بار بھی تو ایسا نہیں لگا کہ وہ شادی سے ناخوش ہو۔ ان کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ مگر خالہ بھابھی خالص آپ کی پسند تھی؟ ہو سکتا ہے بھائی نے آپ کو شرمندہ کروانا چاہا۔ معاذ نے خیال ظاہر کیا۔ جواباً وہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی۔ وہ لوگ گاڑی کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ سبحان صاحب اس موضوع کو سننے کے ساتھ ہی بھڑک اٹھتے اور اس وقت ان میں کسی چک چک کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ گاڑی پھر چل پڑی تھی۔ سبحان صاحب پھر اندر ہی اندر ارباز پہ بھڑکنے لگے تھے۔ جویریہ بیگم کو خولہ اور داؤد کا فکر ستا رہی تھی، جبکہ معاذ ماں باپ کو پریشان دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ بے ساختہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا جب وہ صحیح سلامت گھر تک پہنچ گئے تھے۔ چھوٹی سی گلی میں بدبو ہی بدبو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کہیں کہیں سے آتی روشنی نے گلی کو بالکل اندھیرے میں ڈوبنے سے کافی حد تک بچا لیا تھا۔ گھونگھٹ ذرا سا اونچا کیے داؤد کے اونچے لمبے ہیبلے کو دروازہ کھولتا دیکھ رہی تھی۔ پرانے سے لوہے کے دروازے کی ناخوشگوار آواز دور تک سناٹے کو چیرتی چلی گئی۔ آ بھی جائیے بندر، یا پھول بچھاؤں راہ میں آپ کی؟ وہ جو خود پر کافی حد تک کنٹرول کر چکی تھی، داؤد کے جلے انداز پر پھر سے آنکھیں نم کر بیٹھی۔ سکتے کی کیفیت میں وہ اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو چکا تھا۔ اس کی نظروں کے آگے سبحان صاحب کا وسیع و ریز گھر آ گیا۔ آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنا شروع ہو گئے، اور وہ جو بلب کی زرد روشنی اس کے میٹھے میٹھے میک اپ اور سجے سنورے بسولتے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا، نظریں چراتا بولا، سنو، اس گھر کے در و دیوار کے آگے ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہنا، انہیں روتی بسورتی شکلیں پسند نہیں۔ میں بھی ہر حال میں مسکراتا ہوں، تمہیں بھی یہی کرنا ہوگا اگر اس گھر میں رہنا ہے تو۔ کون یہاں رہنا چاہتا ہے؟ دل ہی دل میں بڑبڑاتی وہ اس وقت صرف تنہائی چاہ رہی تھی۔ اس کمرے میں چلی جاؤ، کمرہ یقیناً بیکار ہے، یہی ایک کمرہ اس گھر میں سب سے بہتر جگہ ہے۔ خولہ مرے مرے قدموں سے چلتی کمرے کے اندر پہنچی۔ کچھ دیر تک کمرے کے بند کیے جانے والے دروازے کو تکنے کے بعد وہ دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھتا چھت پہ چلا گیا، جبکہ خولہ نے جھٹ شال اتار کر اس پھٹے پرانے صوفے پر پھینکی تھی۔ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے صدماتی نظروں سے مختصر سے کمرے میں موجود مختصر سے زنگ لگے سامان کو گھور رہی تھی۔ ایک بار پھر میں پیچھے رہ گئی، سومیا باجی، اجیا اور حور سے ایک بار پھر ان کی باتیں، تضحیک اڑاتی نظریں۔ میں ہمیشہ پیچھے کیوں رہ جاتی ہوں؟ مسٹر ارباز، تم تو مجھے کبھی ملو، گنجا نہ کیا تو بولنا۔ مذاق بنا کے رکھ دیا سب کے سامنے میرا۔ پہلے ہی کیا تھا میرے پاس فخر کرنے کو، ایک ذرا عزت نفس تھی، وہ بھی مجروح کر کے رکھتی۔ اللہ تمہیں اس کی سزا ضرور دے گا، انشاءاللہ، ضرور۔ نہیں کرنی تھی شادی تو مت کرتے، الو کے پٹھے۔ کون سا میں مر رہی تھی، گن پوائنٹ پر بلواتی تھی بارات میں نے، ایک ایک زیور نوچ نوچ کے اتارتی، اب ارباز کی اگلی پچھلی نسلوں کو کوس رہی تھی۔ میری سہیلیاں اگر اس دڑبے میں آئیں گی تو کیا سوچیں گی؟ میں اب کبھی کسی سے نہیں ملوں گی، نہیں۔ خود کو کس بات کی سزا دوں میں چلی جاؤں گی یہاں سے، کبھی واپس نہیں آؤں گی، ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، ورنہ یہاں دم گھٹ جائے گا میرا، بس میں صبح ہی چلی جاؤں گی۔ امی آئیں گی نہ کل، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ ڈپریشن اور مسلسل رونے کی وجہ اس کا سر بھاری ہونے لگا تھا۔ خود سے جنگ کرتے کب اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبنے لگا، اسے احساس نہیں ہوا۔ نڈھال سے صوفے پر بیٹھتی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ کتنی دیر سے پلنگ پر آڑا ترچھا لیٹا دسمبر کی سرد ہوا سے بے نیاز وہ سوچوں کے جال میں الجھا تھا۔ کیا ہو چکا ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ جو ہوا کیا وہ ٹھیک ہوا؟ سوال بہت اٹھ رہے تھے، جواب ندارت۔ خولہ کچھ کھا نہیں رہی۔ الجھے ذہن میں اچانک ایک آواز گونجی اور وہ چونک کے اٹھ بیٹھا۔ نکاح کے بعد اس نے کسی کو کہتے سنا تھا لیکن دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ اس کا سارا دھیان اپنی پلیٹ میں بنے بریانی کے پہاڑ کی طرف تھا۔ تیزی سے اٹھ کر وہ نیچے بھاگا تھا۔ اندر سے بند دروازے نے اس کا سارا جذبہ ہمدردی جھاگ کی مانند بٹھا دیا۔ بدتمیز دلہن، سنو، او محترمہ، دروازہ کھولو۔ ٹھک ٹھک ٹھک، کوئی کمبل لحاف ہی پھینک دو باہر، سردی سے مر گیا میں تو۔ شادی کی پہلی رات بیوہ ہو جاؤ گی؟
अगर खौला जाग रही होती तो शायद दरवाज़ा खोल भी देती। वो तो आल में बेहोशी में थी। सुबह सबसे पहले इसका दिमाग ठिकाने लगाना होगा। तिल मिलाते हुए इसने सहन में पड़ी इकलौती चारपाई को घसीट कर किचन के दरवाजे के आगे रखा। चूल्हा जलाकर आंच ज़रा धीमी की और पलंग पर सुकड़ सिमट के लेट गया। शुक्र था कि जैकेट पहन रखी थी। बगलों में हाथ डालकर एक बार फिर से सूरत हाल पर गौर व खौस करने लगा। नींद की वादियों में गुम होने से पहले आखिरी ख्याल इसके जहन में उभरा था वो ये था कि खौला बेगम जो इतनी प्यारी लगी है, ये निकाह के 2 बोलों का कमाल है, ये शहर के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर का। दुखते सर के साथ इसे हल्की हल्की हरारत भी महसूस हो रही थी, जबकि उल्टी सीधी हालत में सोने की वजह से जिस्म भी बुरी तरह दुख रहा था। शानों से ज़रा नीचे आते बालों में अब भी कहीं कहीं पिन लगे हुए थे, जिन पर ध्यान दिए बगैर तराश खराश से मुज़य्यन दुपट्टा सर पे ओढ़ती, हाथ आपस में रगड़ती, बगौर कमरे का जायज़ा लेती, एक बार फिर एहसास कमतरी का शिकार हुई थी। एक सिंगल बेड, पुराना सा उधड़ा हुआ एक सोफ़ा, इसके आगे रखी बुरी तरह चटकती हुई टेबल, दीवार गिर अलमारी जिसमें अखबार और जराइद ऊपर से नीचे तक ठूंसे गए थे। एक आईना दीवार पे लगा था, जिसके ऐन नीचे ऊपर तले रखी 3 छोटी पेटियों पर छोटा सा टीवी रखा था। और बस आधी से ज़्यादा दीवारों से चूना झड़ चुका था, बाकी भी उतरने को बेकरार लगता था। छत पर लगे बड़े बड़े जाले अलग। मुझे आज ही यहाँ से जाना है, कभी वापस नहीं आना है। एक बार फिर दिल में इरादा करती वो कमरे से बाहर निकल आई थी। पलंग पर पड़े दाऊद को नज़रअंदाज करती वो हैरान नज़रों से कोने में लगे जामन के दरख्त को देख रही थी। कल रात इसकी नज़र इस पर नहीं पड़ी थी। भीनी भीनी सी खुशबू ने दाऊद को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। सुकून से तो वो भी नहीं सो सका था। सर्दी की शिद्दत इसे हर थोड़ी देर बाद बेदार कर देती थी। मुसलसल सुकड़े रहने की वजह से इसका जिस्म भी दर्द कर रहा था। टांगे सीधी करते हुए दाऊद ने मुंदी मुंदी आंखों से इसे देखा था, जो खफा खफा नज़रों से इतराफ़ का जायज़ा ले रही थी। इसके चेहरे से होती इसकी नज़रें इसके मेहंदी रचे हाथों पर आकर टिक गई, जो इसके चेहरे से ज़रा ही फासले पर था। जाने दिल में क्या समाई कि बहुत नरमी से वो इसका हाथ थाम गया था। अगले ही पल सटपटा के उठ बैठा था, जब बुरी तरह इसका हाथ झटक के खौला पीछे हुई थी। आप मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करें, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे आप। इसकी हल्की ब्राउन सुर्ख होती आंखों से नज़रें चुराती वो मिनमिनाई थी। दाऊद ने पहले पलंग उठाकर दीवार से लगाकर खड़ा किया, फिर रात से जलता चूल्हा बंद करके इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं नज़र के चश्मे की अशद ज़रूरत है बेगम। ये क्या बोलते हैं आप मुझे? मेरा नाम खौला है। मगर तुम मेरी बेगम हो। जवाबन नाक की फनक फुलाकर वो इसे सरतापा घूरने लगी। इसकी यूँ देखने पर दाऊद पोज मार के खड़ा हो गया। आप जैसे बड़े मर्द पर ऐसी बचकाना हरकतें बिल्कुल सूट नहीं करती। ठक अपने टूटते दिल की आवाज़ दाऊद ने सुनी और जबरन मुस्कुराया। इतना इतना बड़ा मर्द भी नहीं हूँ मैं। 30 साल का हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है मुझे। फटी नज़रों से इसे देखती खौला बेयकीन थी। वाकई हाँ बिल्कुल, वैसी जैसे तुम 25 साल की बच्ची हो। एक्सक्यूज़ मी, मैं भी सिर्फ 19 की हूँ और जब तक 30 की नहीं हो जाती तब तक 19 की ही रहूँगी, समझे? ये कोई बात है भला? अभी तो मेरे हंसने खेलने के दिन है। कुछ देर तक मुस्कुराहट दबाकर इसे देखने के बाद वो फलक शगाफ कहकहा लगाकर हंस पड़ा। खौला उंगलियां चटखा कर रह गई। सुना बेगम, प्लीज़ मुझे ऐसे वैसे मत मुखातिब करें। मगर तुम्हारा मुझसे यही रिश्ता है। दाऊद को इसे सताने में मज़ा आ रहा था। बड़ी दिलचस्प सुबह उतरी थी इस घर में। नहीं रहेगा ये रिश्ता? दाऊद की मुस्कुराहट कुछ मांद हुई थी। क्यों? इस दड़बे की वजह से। जितने रकबे पर ये घर बना है ना, इससे ज़्यादा ही रकबे पर सिर्फ मेरा कमरा बना होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो तमाम मामलात क्लियर कर देना चाहती थी। नर्म सी मुस्कुराहट के साथ दाऊद ने इसके लहजे की मसनूई रौनियत मुलाहिजा की थी। महल में अनचाही बनकर रहने से बेहतर है इस दड़बे में मनचाही बनकर रहो। जवेरिया बेगम की मेहरबानी से वो खौला और इसके घर वालों की मुग़ल हाउस में हैसियत जान चुका था। इसके वालिद कमाल लगारी जलाल और रोहेल साहब के सौतेले भाई थे। बहुत कम उम्र में ही दुनिया छोड़ गए थे। मारा बेगम और इनके दोनों बच्चे इन दोनों भाइयों को और इनके घर वालों को एक बेवजह का बोझ लगते थे। बुरी तरह धड़कते दिल और रुकती सांसों के साथ खौला ने धुंधलाई नज़रों से इन जिगर जिगर करती आंखों में देखा।
फासला कम होने लगा था। उसके सुर्ख हाले में दमकते चेहरे को नज़रों के हिसार में लिए दाऊद ने इसकी तरफ पेशकदमी की थी, मगर एकदम ही रुककर नागवार नज़रों से बचते दरवाजे को घूरा था। बुरा सा मुँह बनाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया था, जबकि खौला की जैसे जान में जान आई थी। सलाम, सुबह बखैर, शादी मुबारक भाई साहब। चहकते महाज अंदर आया था, मगर तिरछी नज़रों से घूरती खौला को देखकर इसकी बातचीत कुछ सुकड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। रूठे रूठे अंदाज में इसने मास के पीछे दाखिल होती जवेरिया बेगम को जवाब सलाम किया था। कैसी हो मेरी बच्ची? जवेरिया बेगम ने मोहब्बत से पूछा। जवाबन मुरव्वतन सर को हल्की जुम्बिश देती अगले लम्हे बेमुरव्वती से रुख मोड़ गई थी। ठंडी सांस भरते उन्होंने इशारे से दाऊद से खौला के बारे में पूछा था। कनपट्टी के पास उंगली घुमाकर दाऊद ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी अम्मी और चाची वगैरह आती होंगी यहाँ। ये तुम्हारा कुछ सामान ले आए हैं हम। फ़िलहाल सिर्फ कपड़े जूते वगैरह लाए हैं। जहेज़ का सारा सामान इंशाल्लाह 1-2 दिनों में शिफ्ट हो जाएगा। सामान यहाँ लाकर क्या खला में छोड़ेंगी आप? जगह कहाँ है यहाँ सामान रखने की? गालों पर लुढ़कते आंसू बेदर्दी से साफ करके इसने एक एक शिकायती नज़र इन सब पे डाली। एक सूटकेस उठाकर कमरे में घुस गई। पीछे वो तीनों एक दूसरे को देख कर रह गए। कुछ पता चला अरबाज का? नाखुशगवार सी खामोशी को दाऊद ने तोड़ा था। नहीं, किसी की कॉल रिसीव नहीं कर रहा, बल्कि अब तो नंबर ही बंद करके बैठ गया है। बस एक बार मास की कॉल रिसीव की थी, जब हालात बेहतर हो जाए तब मैसेज करके बता दें, बस यही कहा। हालात चाहे कितने भी बेहतर हो जाए, जब वो मंजर आम पर आएगा उसके अब्बा लाजमी क़यामत उठा देंगे। रात से अब तक मुसलसल भड़क रहे हैं, थके थके से अंदाज में कहकर वो किचन में घुस गई थी। जबकि उलझन भरी नज़रों से कुछ देर कमरे के बंद दरवाजे को देखने के बाद दाऊद वाश बेसन की तरफ बढ़ गया, जबकि माज बाग की बैग्स गाड़ी से उठा लाने के लिए बाहर निकल गया। तो ये आपका आखिरी फ़ैसला है? आप मुझे वापस घर नहीं लेकर जाएंगी? भीगी आवाज़ में 10वीं बार पूछती खौला उन्हें गुस्सा दिला गई थी। खौला, मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। जैसा भी है अब यही तुम्हारा घर है। तुम्हारी सास ने बताया है मुझे। दाऊद के हालात इतने बुरे भी नहीं हैं। कोई जॉब नहीं है, मगर फारिग बैठने वाला इंसान नहीं है वो। कुछ ना कुछ करता रहता है। बस ज़रा तबीयत में लापरवाही है। आम तौर पर लड़कों की तबीयत में होती है। तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने और ये घर इसके लिए सराय की तरह है। सारा दिन बाहर होता है, इसलिए भी ध्यान नहीं दिया घर की हालत पर। तो अब तुम घर की हालत पर वावेला मचाकर मेरी परवरिश का मजाक मत बनाओ। इसे सजाओ, संवारो, अपनी तबीयत की नफासत और सलीके को काम में लाओ। और प्लीज़ अम्मी, कहाँ मेरा कमरा, कहाँ ही दड़पा? उनकी बात बीच में काटती वो बस हो रही थी। ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी ना, घर वो नहीं, तुम तो वही हो। वहाँ मांग मांग कर रो रो कर तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी की चीज़ें दिलाई जाती थी। वो ठीक था जी, ठीक था। नागवार नज़रों से वो कुछ देर तक अपनी ज़िद्दी सी बेटी को घोलती रही, फिर हतमी अंदाज में गोया हुई। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए इसी सूरत में खुलेंगे जब तुम अपने शौहर की मर्ज़ी से इस घर में आओगी, वरना जूते लगा लगा के वापस भेजूंगी मैं तुम्हें। सख्ती से कहते हुए यकदम ही उनका दिल पसीजा था। उसका गुमसुम सा अंदाज उन्हें तकलीफ़ दे रहा था। मेरा बच्चा, मैं औरत कमज़ोर ज़रूर हूँ, माँ बहुत बाहिम्मत हूँ ना? जवाबन उसने उनके हाथों में कैद चेहरा इस बात में हिला दिया। अगर मुझे ज़रा सा भी दाऊद के किरदार पे शक होता तो बेटा मैं तुम्हारे कहे बगैर मैं तुम्हें साथ ले जाती, ये शादी ना होने देती। मगर तुम्हारी तहमीना चाची ने बहुत तारीफ़ की है दाऊद की, और ये भी कहा कि अगर दाऊद के माली हालात अरबाज से बेहतर होते तो मैं अरबाज की जगह दाऊद से ही खौला का रिश्ता जोड़ती। मुझे ख़ुद भी बहुत प्यारा सा बच्चा लगा है। हालात ने बहुत बर्दाश्त पैदा कर दी है इसमें, तभी मुझे यकीन है तुम्हारे साथ गुजारा कर लेगा। तड़प कर इसने माँ की इस बात पर सर उठाया था, जिनके लबों की मुस्कुराहट इसके यूं देखने पर हंसी में बदल गई थी। समझाना मेरी जिम्मेदारी थी बेटा, समझना तुम्हारा काम है, और मुझे यकीन है मेरी बेटी जल्दी समझ जाएगी। खैर अभी तो तुम साथ चलोगी वापस घर, फिर वलीमे के बाद वापस यहाँ आओगी। तब तक इस घर को ज़रा सेट वेट करेंगे ये लोग। अब मुँह सीधा करो और सहन में चलो, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। सब सहन में समा कैसे गए? ठिठक कर पूछती वो इन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। जैसे तैसे भी समा ही गए। आओ। क्या राजो न्याज हो रहे थे माँ बेटी में? ताई अम्मी ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश में अजीब सी लग रही थी। जवाबन फीका सा मुस्कुरा कर वो अपने लिए बैठने की कोई जगह तलाश करने लगी। वहाँ तो तिल धरने की जगह नहीं थी। सो कमरे के दरवाजे से ही टेक लगा के खड़ी हो गई।
तहमीना चाची ने पहलू से चिपकी बेटी को धमोका जड़ कर उठाया था। इधर आ जाओ खौला। अम्मी और जवेरिया आंटी आते से किचन में एक साथ कैसे फिट हो गई? इतने से किचन में? अभी वो दिल ही दिल में इसी उलझन में थी जब बाथरूम से हाँफती काँपती उजिया बाहर आई थी। इतना छोटा सा बाथरूम, इससे तो बड़ी माचिस की डब्बी होगी। अम्मा आप तो घुस भी नहीं सकेंगी। ताई अम्मी के भारी भरकम वजूद पर चोट करती वो उनका खून जला गई थी। बाकी सब तो हंस दिए थे। खौला का शर्मिंदगी से सर मज़ीद झुक गया था। नाश्ता करके अपने घर के लिए निकलते वक्त एक लम्हे को भी इसके जहन में दाऊद का ख्याल नहीं आया था, मगर जब वो गाड़ी में बैठ चुकी तो वो इसके सामने चला आया था, खिड़की पर झुकते हुए सरगोशियाना गोया हुआ था। तुम काला जादू करती हो, कोई पिछल पैरी हो, ऐसे असरअंदाज हुई हो ना हवासों पर कि बस। हंसी रोकते हुए तेज़ी से पीछे हटा था। सुर्ख चेहरे के साथ शीशा ऊपर को करके खौला सीट पर भी दूसरी तरफ खिसक गई थी। शोखा, ये जूस अभी तक पिया नहीं तुमने? अनार के जूस से भरे गिलास को ट्रे में जूं का तूं देखकर वो इससे खफकी से मुखातिब हुआ था। किसी गहरे ख्याल से चौंक कर वो इसे खाली खाली नज़रों से देखने लगी थी। बगौर इसे देखता अरबाज बेड पर इसके करीब ही बैठ गया था। क्या बात है एनी? मुझे माफ़ कर दो अरबाज, मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी। उठानी तो पड़ी है, मैं इस वक्त ही अपनी हालत लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता जो तुम्हें खून में लथपथ देख कर हुई थी। गहरी सांस भर के अरबाज ने इस लम्हे का तसव्वुर करके बेसाख्ता झुरझुरी ली थी। मगर वाकई जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो सब ना होता तो शायद मुझे कभी एहसास ना होता कि तुम मेरे लिए कितनी ख़ास हो। कितनी देर तक कमरे में बोझल सी खामोशी रही। अरबाज, मुझे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है। एनी का लहजा शर्मिंदगी से चूर था। एमी बुरा लग रहा है, अपने शौहर के साथ मगन होगी। मेरा तो नाम भी भूल गई होगी। शौहर? कौन शौहर? दाऊद। अरबाज के मुंह में जैसे कड़वा बादाम आ गया था। दाऊद? तुम्हारा सौतेला भाई? हाँ। नज़र का चश्मा उतार कर बेड की साइड टेबल पर रखते हुए इसने जूस का गिलास फिर से एनी की तरफ बढ़ाया था, जिसे इस बार बग़ैर एहतजाज के थाम लिया गया था। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने मुझे। मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अरबाज, हम दाऊद भाई के घर चलें? मैं खौला से ख़ुद बात करूँगी। शादी के दिन दूल्हा का भाग जाना इतनी छोटी बात भी नहीं कि इसे यूँ ही भूल जाया जाए। इतने वक्त बाद इसका यूं चहकना अरबाज को अच्छा लगा था, मगर जिनका वो जिक्र कर रही थी इसे वो लोग पसंद नहीं थे। सो बेजार सा हो गया। तुम अच्छी तरह जानती हो एनी कि मेरा और इस शख्स का ताल्लुक़ कैसा है, फिर ऐसी बात कैसे कर सकती हो तुम? अगर हम दोनों ही मर रहे हों और बचने का सिर्फ एक रास्ता हो कि हम एक दूसरे के गले लग जाएं, तो जानती हो हम दोनों ही मर जाना पसंद करेंगे। इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती थी। नागवारी से कहकर एनी ने खाली गिलास इसकी तरफ बढ़ाया था। तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल कर लेंगे अरबाज? एनी एनी एनी, क्या तुम कुछ देर के लिए अपने जहन से अंदेशे झटक नहीं सकती? नहीं, मुझे बताओ, मुझे समझाओ, मेरा दिल हल्का करो। इसके रूहान से होकर कहने पर सर हिला के रह गया। कौन घर वाले? जवेरी आंटी की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं। माज इन मामलों को समझने के लिए अभी बहुत छोटा है। रही बात अब्बा की, तो उनकी तरफ से मैं मुतमईन हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे माफ़ कर देंगे और तुम्हें कबूल भी कर लेंगे। डोंट वरी। अब जो बुरा हुआ अच्छा हुआ इसे भूल जाओ। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब सोच सोच के इन लम्हों को बर्बाद मत करो जिसमें मैं हूँ, तुम हो और मोहब्बत है। इसके हाथ की पुश्त पर नरमी से लब रखता हुआ इसे सारी फिक्रें भूल जाने पर मजबूर कर गया था। लोगों का काम है बातें बनाना, सो बना रहे थे। फूले हुए मुंह के साथ वो दिल ही दिल में बहरी होने की तमन्ना कर रही थी। शादी की तमाम तैयारी मेरे लिए नहीं थी, इसलिए इस वक्त की बनिस्बत आज ज़्यादा प्यारी लग रही हो, क्योंकि आज की तुम्हारी सारी तैयारी मेरे लिए है। सदके वारी होती नज़रों से दाऊद ने इसे देखते हुए कहा था, जो इसका ही लाया हुआ सिल्वर शरारा पहने बैठी थी। ये शरारा इतना कीमती तो नहीं था जितना वो सुनहरा शरारा था जो अरबाज की तरफ से वलीमे के लिए उसके लिए लिया गया था, मगर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। आप बहुत खुश फहम हैं। ये सब आपके लिए नहीं, दुनिया दिखावे के लिए। इसके जलकर कहने पर दाऊद ने होंठ सुकेड़े थे। सुनने में तो आया है कि तुम मैट्रिक फिर इंटर में भी फेल हो गई थी, फिर भी तुमने दिल तोड़ने में पीएचडी कर ली। शाबाश। इतनी अंदर की बातें किस मनहूस ने बताई हैं इन्हें? अल्लाह करे इसका हर बच्चा एक एक क्लास में 10-10 साल लगाए। दाऊद की तरफ से ज़रा रुख मोड़कर खून खार नज़रों से उजिया सोमिया हूर को घूरने लगी थी।
जबकि सोफे पर धंसे सुभान साहब भी मुंह बनाए दाऊद को घूर रहे थे, जो उनके पैसों से बुक कराए शहर के सबसे बड़े शादी हॉल में दूल्हा बना बैठा था। अरबाज, एक बार तो मेरे हाथ लग जा गधे। शुक्र था कि हाल से वापसी पर मोटरसाइकिल पर सफ़र करने के खौफनाक तजर्बे से नहीं गुजरना पड़ा था। माज और जवेरिया बेगम इन्हें गाड़ी में छोड़ गए थे। हल्के फुल्के से शलवार कमीज़ पहनने के बाद वो पुरसुकून से अपने जहेज़ की जहाज़ी साइज़ बेड पर धम से गिरी थी। अब गौर किया तो अंदाज़ा हुआ था कमरा अच्छा खासा कुशादा था। डबल बेड, सोफ़ा सेट, शीशे की नाजुक सी टेबल से लेकर अलमारी, शोकेस काफ़ी अच्छे तरीके से सेट किया गया था। जबकि बेड के ऐन सामने दीवार पर टीवी भी नस्ब था। टीवी देखने की ख्वाहिश दिल में दबाती, नरम गर्म लिहाफ में छुपती दाऊद के कमरे में आने से पहले सो जाना चाहती थी। कुछ देर बाद चौंक कर उठ बैठी थी। दाऊद, जो इसके पहलू में जगह संभाल रहा था, बेसाख्ता मुस्कुराया था। हाय, यहाँ क्यों सो रहे हैं आप? मैंने कहा था ना, मुझसे फ्री होने की ज़रूरत नहीं। तो और कहाँ सोऊं? सोफ़े पर मैं पूरा नहीं आ सकता। नींद से बोझल आंखें दाऊद ने बमुश्किल खोल रखी थी। मेरी बला से? तो मेरी भी बला से। खौला के एहतजाज की परवाह किए बगैर सर तापा लिहाफ में घुसा। कुछ ही देर में गहरी नींद सो चुका था। कुछ देर तक लिहाफ में छुपे दाऊद के वजूद को घोलने के बाद वो आइंदा का लायहा अमल तय करती अलमारी से दूसरा कंबल निकालकर सोफ़े पर चली गई थी। अम्मी ज़रा अपने इस अच्छे बच्चे की हरकतें देखें। नया नया रंग हुआ घर बहुत प्यारा लग रहा था, चिड़िया का घर। छोटे से निखरे निखरे घर को देखकर इसे जो ख्याल आया वो इस पर हंस पड़ी। सुबह की रानाई अपने अरूज पर थी। चाय का आखिरी सिप लेकर इसने गहरी सांस भरी थी। वो इस माहौल को अपने अंदर उतारना चाहती थी, मगर बाहर से आती गटर और कचरे की बू इसका मिजाज बिगाड़ गई। बुरे होते दिल के साथ वो किचन में घुसी थी। पहले अपना कप धोकर वापस रखा, फिर आटे के कनस्तर से आटा निकालने लगी थी। अचानक पानी गिरने की आवाज़ पर चौंक कर किचन से बाहर झांका। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सहन में लगे नलके से बाल्टी में पानी भरते हुए दाऊद ने बड़ा जानदार सलाम किया था। मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ा कर सलाम का जवाब देती फिर किचन में घुसी थी। लम्हों बाद छपाक छपाक पानी गिरने की मुस्तकिल आवाज़ पर फिर बाहर निकली। अब वो सदमे की कैफियत में से देख रही थी। नंगा पुंगा घुटनों तक आते कच्चे में ठंडे पानी से गुसल कर रहा था। अंदाज में उजरत बुरी तरह गड़बड़ा कर इसकी तरफ पुश्त करती भिंची आवाज़ में चिल्लाई थी। आप यहाँ क्यों नहा रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही? तुम्हें आ रही है? चली जाओ यहाँ से। मैं तो यहाँ ऐसे ही नहाता हूँ। आप वाशरूम में क्यों नहीं नहा लेते? खौला की हैरत ही ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि वो वाशरूम है, सिर्फ वो वाशरूम है। जब छुई मुई सी उज्जिया को मसला हो सकता है तो इस लंबे तड़ंगे को क्यों नहीं? उस दिन की उज्जिया की बात जहन में आने पर वो सर झटक कर चली जाना चाहती थी। नज़रें इस खातून पे मगर नज़रें इस खातून पर पड़ गईं जो अपनी ऊंची दीवार पर टंगी उन्हीं के घर में झांक रही थी। फैलती आंखों के साथ इसने इनकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। अगली पल इसकी गैरत ने जोश मारा था। क्या मसला है आंटी? आंखों से शैम्पू का झाग हटाकर दाऊद ने चौंक के इसके मुखातिब को देखा। वो जो कोई भी थी तेज़ी से पीछे हो चुकी थी। बेसाख्ता दाऊद के हलक से कहा निकला था, हंसी तो बड़ी आ रही है, शर्म नहीं आ रही? बुड़बुड़ाती ख्वाला बंद आंखों के साथ बमुश्किल दीवार से लगा खड़ा पलंग घसीट कर इसके आगे खड़ा करके पर्दे का इंतज़ाम करती इसके मज़ीद हंसने का सामान कर रही थी। जेलस हो रही हो? जेलस होती है मेरी जूती। एक चीज़ शर्म भी होती है। अच्छा वाकई? किस रंग की होती है? और क्या मैं गरीब अफोर्ड कर सकता हूँ? जवाबन किचन में कुछ बहुत ज़ोर से पटका गया था। गीले बालों को उंगलियों से संवारता वो पलंग पे बैठा था। आती जाती नरम सी धूप इसके कांपते वजूद पर कोई असर नहीं कर रही थी। चाय की तलब शदीद थी। खौला की किचन में मौजूदगी में वहाँ जाकर अपना सर नहीं तोड़वाना चाहता था। इसे नाश्ते की ट्रे उठाए आते देखकर वो भी अपना नाश्ता बनाने के लिए उठने ही लगा था। हैरत ज़दा सा उसे ट्रे अपने सामने रखकर वापस मोड़ते देखकर रह गया। ये मेरे लिए? नहीं, उन्हीं छत वाली आंटी के लिए। तुमने बनाया? नहीं, उन्हीं छत वाली आंटी ने। वो बमुश्किल अपनी हंसी रोक पाया था इस बार। लगता है छत वाली आंटी को दिल पर ले लिया। जब तक वो अपना नाश्ता और चाय लेकर आई वो अपना नाश्ता ख़त्म कर चुका था। सुनो, अगर मेरे जाने के बाद मोहल्ले से कोई आंटी वगैरह मिलने आए तो प्लीज़ उनसे अच्छे तरीके से मिलना। चाय का घूंट भरते हुए
वो मिन्नतों से अंदाज में बोला था। अगर वो आंटियाँ भी मुझे इन्हीं छत वाली आंटी जैसी लगी तो साफ साफ मुंह पे निकल जाने को कह दूंगी मैं। खौला का अंदाज़ कतई था, और तुम्हें कैसे अंदाज़ा होगा? वो भी वैसी हैं, बातों से अंदाज़ा हो जाता है, नादान नहीं हूँ मैं। वैसे मुझे ये इलाका कुछ सही किस्म का नहीं लगा। यूँ मत बोलो, यहाँ की अक्सर आंटियों ने बहुत मदद की है मेरी नानी की, मुझे पालने पोसने में। मान सम्मान है तकरीबन सभी। दाऊद को इसकी ये बात कुछ पसंद नहीं आई थी, जब ये लहजे में खफकी नुमाया थी। अच्छा? खौला के अंदाज में कुछ था, चौंके से देखने लगा था। क्या ये माँ समान आंटियाँ गर्मियों की गर्म तरीन दोपहर में या सर्दियों की सर्द तरीन रातों में आपको अपने ज़ाती कामों के लिए दुकानों पर दौड़ाती नहीं फिरती थी, बावजूद इसके कि सभी के घरों में आपके हम उम्र बच्चे मौजूद थे? खौला के तंजिया कहने पर गुमसुम सा रह गया। यह हकीकत थी, पहले कभी ये बात दाऊद ने नोट नहीं की थी, और अब इस घड़ी से अंदाज़ा हुआ था कि ये कड़वी हकीकत थी। बुझते चेहरे के साथ इसने चाय का आखिरी घूंट भरा था। हिम्मत करके कुछ पुरुम्मीद सा फिर गोया हुआ। ये सब तुम अपनी ताई अम्मी वगैरह के रवैये के बलबूते पर कह रही हो ना? सब एक जैसे नहीं होते, और बाज़ दफ़ा तो अपनों से बढ़कर पराये अपने लगते हैं। कोई किसी का अपना नहीं होता। दरअसल परायों से हमें कोई उम्मीद नहीं होती, इसलिए उनका थोड़ा सा अच्छा भी हमें बहुत लगता है, जबकि अपनों से हमारी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। सो उनका थोड़ा सा बुरा भी हमें बहुत बुरा लगता है। दाऊद बेसाख्ता मुस्कुराए। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम नाशुक्री हो? जी नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बिला वजह के एहसास तशक्कुर से बाहर निकल आए। नाशुक्रे लोग कभी खुश नहीं रहते, और तुम इस बात का चलता फिरता सबूत हो बेगम। हाँ, तेज़ी से बर्तन समेट कर फिर किचन में घुस गई थी। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा, महल की रानी ने इतना अच्छा पराठा आमलेट कैसे बना लिया? महल की रानी नहीं, महल की अनचाही, सब आता है मुझे। किचन से आती आवाज़ पर कमरे की तरफ बढ़ते इसके कदम साकित हुए थे। मेरी बातें याद करनी शुरू कर दी हैं, एक दिन मुझे भी याद करना शुरू कर देगी इंशाल्लाह, वो पुरयकीन हुआ था। चाय का तीसरा कप पीते हुए नर्म सी धूप से लुत्फानंदोज़ हो रही थी जब इसके फ़ोन ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। फ़ोन करने वाले का नाम पढ़कर इसका मूड कुछ ऑफ हुआ था। अस्सलाम वालेकुम उज्जिया बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? और बाकी सब? सुबह सुबह फ़ोन क्यों किया है उन्होंने? दिल ही दिल में बुड़बुड़ाती खौला को अब चाय भी कड़वी सी लगने लगी थी। यूँ ही, क्या मैं बग़ैर वजह के फ़ोन भी नहीं कर सकती? कर तो सकती हैं, कभी किया नहीं आपने? उसके साफ कोई से कहने पर उज्जिया खिलखिला के हंस पड़ी थी। वो ना, मेरे ससुराल वालों ने आज सब घर वालों को रुखसती की तारीख तय करने के लिए बुलवाया। मुबारक हो। खैर मुबारक। और पता है, वजाहत कह रहे थे कि हनीमून पर हम वर्ल्ड टूर पर चलेंगे। शुरू हो गई इनकी शौखियाँ, बुड़बुड़ाहट। अल्लाह जाना नसीब करे। आमीन। वैसे मैं ना रात से अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ, सुबहान अंकल ने मैरिज हॉल पहले ही बुक करवा लिया था, या कैंसिल नहीं करवा दिया, वरना वजाहत वगैरह के सामने कितनी इंसल्ट होती ना। क्योंकि दाऊद भाई तो शायद गली में टेंट लगवा कर वलीमा अरेंज करते। ओ माय गॉड। बाय द वे, तुम लोग हनीमून पे कहाँ जा रहे हो? कम अज़ कम किसी पार्क में तो चले ही जाना घूमने फिरने। कितनी फ़नी हूँ ना मैं। जहन्नुम में जाएंगे हनीमून पर, आप चलेंगी? भड़क कर कहती जज्बात में आकर फ़ोन ही ऑफ कर चुकी थी। अल्लाह करे वजाहत भाई का बिजनेस डूब जाए। डुबडुबी आंखों के साथ बावाज़े बुलंद बद्दुआ देकर दुपट्टा मुंह पे रख के चित पड़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरबाज की तरफ से ख़ुद से फ़ोन किया गया था, सो वह ख़ुद में बुड़बुड़ाते हुए सुबहान सईद से छुपता छुपाता अपने कमरे में पहुंचा था। कब तक बिल से निकलने का इरादा है भाई? बहुत जल्द निकलूँगा, और ऐसा निकलूँगा तुझे बिल में छुपने का मौका भी नहीं मिलेगा। अरबाज भड़का। फ़िलहाल तो आप अपनी खैर मनाएं, मज़े से कहकर मांस जलाने वाले अंदाज में हंसा था। चिंटी के भी पल निकल आए। अब्बा का बताओ, कैसे मिजाज शरीफ हैं? अम्मा थोड़ा समझा कर उन्हें बमुश्किल दाम करती हैं। इनका कोई जानने वाला अचानक ही उन्हें एहसास दिलाकर जाता है कि आपकी गलती बहुत बड़ी थी। मांस के बताने पर वो तिल मिलाया था। कौन है ये लोग? इन्हें घर में घुसने मत दिया करो। बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप भाई। अच्छा, आपको पता है दाऊद भाई का घर इतना प्यारा लग रहा है, खौला भाभी के सामान से सज चुका है घर। इसमें हेलो हेलो, लो फ़ोन ही काट दिया। मुँह बसोर कर मांस फिर गेम ऑन कर चुका था। लड़ते झगड़ते चिढ़ते चिढ़ाते दिन पर दिन गुजरते चले गए। यूँ पूरा दिसंबर तमाम हुआ।
जनवरी की पहली सुबह वो बड़ी तरोताज़ा सी बेदार हुई थी। नए इरादे, कुछ वसवसे और अपनी ज़िंदगी में आने वाली इस अजीब तब्दीली पर गौर व फिक्र करती वो इस वक्त हवास बाख्ता सी होकर किचन से बाहर निकली थी जब कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई थी। आप कैसे गिर गए? ठीक तो हैं आप? इसे ज़मीन पर गिरा देखकर अच्छी खासी परेशान हो गई थी। इसके जवाब न देने पर बिल्कुल ही रो देने को हो गई थी। आप डरा रहे हैं मुझे, क्या हो गया है? बुखार हो रहा है यार, जहमत ना हो तो उठने में मदद कर दो, कांटे नहीं होगे मुझ में। गहरी गहरी सांसें लेते बमुश्किल बोल पाया था। खिफ़त ज़दा से होकर खौला इसी मदद को आगे बढ़ी थी। बुखार हो रहा था जब तो बाहर क्यों आए थे? तुम्हारी खुशबू खींच लाई थी, नक्काहत ज़दा आवाज़ में कहता अपना सारा बोझ इस पे छोड़ चुका था। गिरते गिरते इसने मुश्किल से ख़ुद को संभाला था। क्या आप बेहोश हो गए? परेशान होकर इसने फ़ौरन ही मास को बुलाने का इरादा किया था। तुम्हारे कुर्ब में होश में रह सकता हूँ मैं? दाऊद की नक्काहत ज़्यादा शौकियों पर सुर्ख चेहरे के साथ खौला इसे बोझ की तरह बेड पर फेंक कर ख़ुद भी वहीं बैठकर हाँफने लगी थी। बुखार दिमाग पे चढ़ गया है शायद। इसे बिस्तर पर ठीक से लिटाकर कंबल भी इस पर डाल चुकी थी। कुछ खाएंगे आप? दाऊद का शाना ज़रा सा हिलाकर इसने फिर पूछा था। तुम्हें? आंखें फैलाकर खौला ने दूसरी तरफ लुढ़के इसके चेहरे को बगौर देखा। इसे आंखें मौंदे बेसुध देखकर खज्जल सी हुई थी। पता नहीं, इन्होंने ही कहा ये मेरे कान बजे हैं। इस शख्स का वैसे कोई हाल नहीं। क्या बनाऊं? सूप बना लेती हूँ, खुद से कहते कमरे से निकल गई थी। अचानक होती बारिश ने सर्दी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा कर दिया था। बारिश की शैदाई थी, इस सर्दी में भीगा तो नहीं जा सकता था। कमरे की दहलीज पर बैठी बारिश का नज़ारा कर रही थी। खुशकिस्मती से बारिश का रुख मुखालिफ सिम था, जिसकी वजह से भीगने से महफूज थी। क्या सोचा जा रहा है? अरे आप यहाँ क्यों आ गए? वापस बिस्तर पर जाएं। 3 दिन बाद आप कुछ बेहतर हुए। बहुत खिदमत गुजारी कर ली मैंने, अब बीमार हुए तो बिल्कुल नहीं करूँगी। अब जमे क्या खड़े हैं, जाएं, ठंड लग जाएगी आपको। एक ही सांस में कहती वो उठ खड़ी हुई थी। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें भी लग जाएगी। मज़े से कहता वहीं दहलीज पर बैठ गया था। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मुझे भी यहाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? आपको ही बारिश पसंद है? मुझे तुम पसंद हो। जिन नर्म गर्म निगाहों से दाऊद ने इसे देखकर कहा था, वो नज़र इसका चेहरा दहका गई थी। आप ज़िद पर आ जाते हैं तो किसी की नहीं सुनते। ये जैकेट ही पहन लें। बेड से इसकी जैकेट उठा लाई, नज़रें चुराते हुए इसकी तरफ बढ़ाती। कुछ लम्हों तक दाऊद इसके हाथों में मौजूद अपनी स्याह जैकेट को घूरता रहा। थका थका सा उठ खड़ा हुआ। खौला, जब तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती, मेरी परवाह भी मत किया करो। तुम्हारी परवाह मुझे उम्मीद देती है, और जब तुम मेरी उम्मीद तोड़ देती हो तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत। गुमसुम खड़ी वो खाली खाली नज़रों से इसे अलमारी से अपना बिस्तर निकाल कर बेड के साथ लगाते देख रही थी। इसे नीचे लगाए गए बिस्तर पर लेटता देखकर इसे यकदम जैसे होश आया था। बेड पर ही लेट जाए ना आप, कोई बात नहीं। नहीं शुक्रिया, मुझे मेरी औकात याद रखने दो। तुम्हें 3 दिन से सोफे पर सोना पड़ जाए, इसके लिए सॉरी। निरूठेपन से कहता सर तापा लिहाफ में छुप गया था। अच्छे भले चलते चलते अचानक पता नहीं क्यों ट्रैक से उतर जाते हैं। वापस दहलीज पर बैठते हुए पता नहीं क्यों इसकी आंखें नम होने लगी थी। मुझे जिससे भी मोहब्बत है, कुदरत इसे मुझसे दूर क्यों रखती है? भीगती आंखों के साथ दाऊद को जवेरिया बेगम, अपने मरहूम वालिद और नानी बहुत याद आए थे। जो ही वो कोई ऐसी वैसी बात करता, खौला इससे कतराना शुरू कर देती। फिर वो पहले सा माहौल बनाने के लिए कुछ ना कुछ किया करता था। इस वक्त भी वो छत पे चला आया था। हाथ में बड़ी सी ट्रे थी जिसमें पकौड़ों से भरी प्लेट और चाय के 2 कप रखे थे। ढलता दिन खौला को हमेशा से अजीब सी सौगवारियत में लिपटा महसूस होता था, और वो इस सौगवारियत को हमेशा अपने अंदर उतरता महसूस करती थी। इस वक्त भी किसी गैर मरी नुक्ते पर नज़रें जमाए बैठी खौला दाऊद को उदासी की हसीन मूरत लगी थी। ढलते सूरज की नारंगी किरणें ऐन इसके चेहरे पर पड़ती इस मूरत के हुस्न में इजाफा कर रही थी। बेईमान होते दिल को संभाले वो खनकारा था। चौंक कर इसने पहले दाऊद को, फिर इसके हाथों में मौजूद ट्रे को देखा था, जो वो इसके पहलू में रख चुका था। एक हाथ में 4-5 पकौड़े उठाकर दूसरे हाथ से इसने अपना कप उठाकर दीवार पर रख दिया था। खुद भी इस पर चढ़ के बैठ गया। ये पकौड़े आपने बनाए हैं? जैसा वो वखरा था, इससे ये उम्मीद की जा सकती थी। नहीं, लाया मैं ही हूँ, और ये चाय मैंने खुद बनाई है, इसलिए अगर तुम मेरी तारीफ़ करना चाहती हो तो कर सकती हो। मासूमियत से कहता वो इसे हंसने पर मजबूर कर गया था।
ارے آپ کے کپ پر کتنی مکھیاں بیٹھی ہیں۔ کپ کے کنارے پر قطار سے بیٹھی مکھیوں سے اسے کراہیت محسوس ہوئی تھی۔ بیٹھے رہنے دو، بچپن کی سنگی ساتھی ہیں میری، ہر چیز ساتھ ساتھ کھائی پی ہے ہم نے، اطمینان سے کہہ کر داؤد نے کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ کم سے کم کنارے کو صاف ہی کر لیتے، کتنے گندے ہیں آپ۔ جواباً داؤد اس کے تاثرات دیکھتا ہنس پڑا تھا۔ داؤد؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد خولہ نے اسے پکارا تھا۔ چونک کر داؤد سر تاپا کان بن گیا تھا۔ پہلی بار خولہ نے اس کا نام لیا تھا۔ ہاں؟ وہ جو ویران سا بنگلہ نظر آ رہا ہے وہ کس کا ہے؟ خولہ کی تمام توجہ کافی دور نظر آتے مخدوش شال بنگلے پر تھی، تبھی وہ داؤد کا پھولتا منہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ مجھے کیا پتا؟ لٹھ مار لہجے میں کہہ کر داؤد نے پھر سے کپ پر امڈی آتی مکھیوں کو غصے سے اڑایا تھا۔ ارے آپ بچپن سے یہاں رہ رہے ہیں، یہ بنگلہ اتنا دور بھی نہیں ہوگا، آپ کا آنا جانا تو ہوا ہوگا کبھی اس کے آس پاس سے۔ داؤد نے بغور اس کی دلچسپی ملاحظہ کی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالے ہیں اسے ایسے ہی دیکھتا آیا ہوں۔ کیا واقعی؟ ہاں واقعی۔ واو، تم اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ اگر یہ واقعی مستقل بند رہا ہے تو اب تک تو یہاں جن بھوتوں نے بسیرا بھی کر لیا ہوگا نا؟ لگتا ہے میرا بخار تمہارے دماغ پہ چڑھ گیا، پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی ہو۔ مجھے ایڈونچرز بہت پسند ہیں، پلیز نا آج چل کے دیکھتے ہیں۔ کل سے آپ کام پہ جانا شروع کر دیں گے، وہی عام سے دن رات۔ گھورے کیا جا رہے ہیں؟ ہاں ہاں کیجیے نا، بہت مزہ آئے گا۔ پلیز، ایک ہی سانس میں کہنے کے بعد آخر میں معصوم سی شکل بناتی ہاتھ بھی جوڑ چکی تھی۔ تیزی سے اس کے بندھے ہاتھ کھولنے کے بعد قطعیت سے گویا ہوا تھا۔ نہیں پلیز، دانت پیسے گئے، نہیں، اطمینان، پلیز، ناک کی پھنک پھیلائے گئے، نہیں، مکمل اطمینان، داؤد پلیز، آنکھیں دکھائی گئیں، خولہ نہیں، اسی کے انداز میں کہتا وہ اسے تپا گیا تھا۔ اپنی چائے پکوڑوں کی پلیٹ اٹھا کر پیر پٹکتی نیچے جانے لگی تھی جب وہ بھنا کر بولا تھا، اچھا ملکہ عالیہ، چلیں گے اس بھوت بنگلے؟ آئی تو بڑی ٹارزن بن کر تھی، مگر بلند و بالا اندھیرے میں ڈوبی بوسیدہ بنگلے کی عمارت کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کو اس سے اپنے شوق ایڈونچر پر پچھتاوا ہوا تھا۔ عین اسی وقت جب وہ پچھتاوے میں گھری تھی، داؤد نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑکی سے اندر جانے کا اشارہ کیا تھا جو اس نے ابھی ابھی توڑی تھی۔ یہ ہے نا ساتھ میرے؟ مطمئن سے ہو کر وہ اس کا سہارا لے کے کھڑکی کی دوسری طرف کود گئی تھی۔ داؤد نے بھی فوراً ہی چھلانگ لگائی تھی۔ خولہ کے ہاتھ میں ٹارچ تھا جبکہ داؤد نے موبائل کا ٹارچ کھول رکھا تھا۔ جہاں وہ اترے تھے وہاں دیواریں جالوں سے جبکہ زمین مٹی کی دبی اس تہہ سے چھپی ہوئی تھی۔ واو نا، دانت نکوستی وہ اس کے پیچھے قدم بڑھا چکی تھی۔ مٹی اور جالے دیکھ کر ہی خوش ہونا تھا تو وہ تو تم سٹور روم میں بھی دیکھ سکتی تھی۔ وہ جلدی سونے کا عادی تھا۔ رات کے 1:30 بجے اس پاگل کے ساتھ پاگل پن کرتے ہوئے وہ جمائی لیتا چڑچڑایا تھا۔ اس سٹور روم میں میری ایک ٹانگ آ جائے وہی بہت ہے۔ کتنے بورنگ ہے آپ، اگر یہاں کوئی جن بھوت نظر نہیں بھی آتے تو بھی یہ سب کتنا خوابناک سا لگ رہا ہے نا؟ اس کی آنکھوں کی روشنی اندھیرے میں بھی واضح تھی۔ تمہیں جن بھوت اٹریکٹ کرتے ہیں؟ تمہیں اندھیرے، مٹی، جالے اٹریکٹ کرتے ہیں؟ اب سمجھ آیا۔ تمہیں میں کیوں نہیں اٹریکٹ کرتا؟ میں شہزادوں سا، میری باتیں خوشبو سی، میری آنکھیں جگنوں سی، میرے آس پاس بو ناگواری سے اپنی بات بیچ میں روکتا داؤد اگلے پل کچھ ٹھٹک کے اسے ٹوک بیٹھا تھا۔ خولہ، ایسی جگہ پر یوں نہیں ہنستے۔ کیوں نہیں ہنستے؟ میں تو ہنسوں گی۔ مصنوعی کہکہے لگاتی وہ آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ یہ خاتون بھی بس جھنجلا کر وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا تھا جب کچھ دیر خاموشی کے بعد خولہ کی دل خراش چیخ پر دیوار نوار وہ اس حصے کی طرف بھاگا تھا جہاں وہ گئی تھی۔ خولہ، خولہ کہاں ہو یار؟ خولہ، مسلسل آوازیں لگاتے داؤد کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی آواز میں نمی گھل گئی ہے۔ ویران اندھیر بنگلے میں اس کی پکاروں کے سوا صرف اس کے اپنے قدموں کی آواز تھی۔ مستقل خاموشی نے اسے وحشت زدہ سا کر دیا تھا۔ خولہ بھی، اور اسی وقت تو میرے سامنے نہیں، تو میں اکیلے یہاں سے چلا جاؤں گا؟ یک دم ہی رک کر اس نے خولہ کا نمبر ڈائل کیا تھا اور اگلے پل غیظ و غضب کا شکار اس کے سر پہ تھا۔ عین اس کے چہرے پر لائٹ مارتا کچھ دیر تک جبڑے کسے اسے گھورتا رہا۔ خولہ کا بازو تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اس ٹیبل کے نیچے سے نکالا تھا جو کافی پرانی لگ رہی تھی مگر کافی اونچی تھی، جس کے باعث وہ اس کے نیچے چھپ سکی تھی۔ خاموشی سے وہ اس کا بازو چھوڑ کر واپسی کے راستے پر چل پڑا تھا۔ اس کے تاثرات پر شرمندہ ہوتی خولہ اپنا مذاق انجوائے بھی نہیں کر سکی تھی۔ بمشکل اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش میں ہلکان بالآخر اس کے سامنے آتی اسے رکنے پر مجبور کر گئی۔
ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتا وہ دائیں ہوا تھا، خولا بھی دائیں ہو گئی، وہ بائیں ہوا، وہ بھی بائیں ہو گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ایسی ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا مذاق تھا۔ چھوٹا سا مذاق؟ داؤد نے آنکھیں پھیلائیں۔ یہ میری اڑی ہوئی شکل دیکھو۔ اس نے لائٹ اپنے چہرے پر ماری۔ اور بتاؤ، کیا یہ واقعی چھوٹا سا مذاق تھا؟ انگلیاں چٹکھاتی کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ داؤد کا انداز نرم ہو گیا تھا، ورنہ کچھ لمحے پہلے وہ اس کے جو تاثرات دیکھ چکی تھی، اسے اس اجڑے بنگلے سے زیادہ داؤد سے ڈر محسوس ہوا تھا۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ چلو، یا اور بھی کوئی ایڈونچر کرنا ہے؟ کرنا تو تھا، لیکن چھوڑیے، آپ ڈر گئے ہیں۔ مسکراہٹ دبا کر کہتی خولا اسی بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاں، ڈر گیا تھا، کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ تم تو ہو ہی پاگل، اور میں بھی اتنا بڑا مرد ہو کہ تمہارے ساتھ مل کر پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہوں۔ بے ساختہ سی مسکراہٹ خولا کی لبوں پر بکھری تھی۔ دونوں اس ٹوٹی کھڑکی تک پہنچے ہی تھے کہ کچھ گھسیٹے جانے کی آواز پر ٹھٹک کے مڑے تھے۔ پہلے آواز کی سمت دیکھا، پھر ایک دوسرے کو۔ چلیے۔ خوف زدہ سی خولا اس کا بازو تھام کے آگے بڑھی تھی جب بہت سے بچوں کے ایک ساتھ ہنسنے کی مدھم سی آواز ابھری تھی۔ اب دونوں ہی کی سٹی گم ہوئی تھی۔ گرتے پڑتے وہ دونوں کھڑکی سے باہر کودے تھے۔ اندھا دھند وہ دونوں کیچڑ اور کچرے سے بھری تنگ گلیوں سے بے پرواہ بس بھاگتے جا رہے تھے، بھاگتے جا رہے تھے اور بھاگتے ہی جا رہے تھے۔ اپنی گلی میں پہنچ کر دونوں ہی جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھے گہری گہری سانسیں لینے لگے تھے۔ سانسیں ذرا قابو میں آئیں تو دل پر ہاتھ رکھ کے خولا نے داؤد کو دیکھا۔ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے داؤد نے خولا کو، اور اگلے پل ان کے حلق سے فلک شگاف کہکہے بلند ہوئے تھے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو ہنسنے سے منع بھی کر رہے تھے اور ہنسنے سے باز بھی نہیں آ رہے تھے۔ بس کر دو خولا۔ داؤد پہلے سنبھلا تھا، ورنہ محلے والے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ شاید کوئی جن اور جننے کی جوڑی باہر گھوم رہی ہے۔ آپ کو جن کہیں گے تو کچھ غلط نہیں کہیں گے، ویسے آپ پر دیو زیادہ سوٹ کرے گا۔ اس کے قد پر چوٹ کرتی خولا جواباً بولی تھی، ہاں، کاش میں ہوتا جن، جس پر چاہتا قبضہ کر لیتا۔ معنی خیزی سے بولا تھا اور خولا نے ہمیشہ کی طرح انسنا کر دیا تھا۔ گھر تک کا راستہ دونوں انہیں بے دھیانی میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کاٹا تھا۔ آج ہونے والے واقعے کے بارے میں ہی سوچتی خولا داؤد سے اس بارے میں باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر داؤد کے کمرے میں آنے سے پہلے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے آپس میں اپنے ہاتھ مسلتا نیچے لگے اپنے بستر پر لیٹنے لگا تھا کہ نظریں خولا کی چہرے پر اٹک گئیں۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ خولا نے سوتے ہوئے رخ اس کی طرف رکھا تھا، ورنہ وہ چہرہ دوسری طرف موڑ کے ہی سوتی تھی۔ بظاہر تو یہ بہت معمولی سی بات تھی، کوئی داؤد سے پوچھتا۔ یہ معمولی بات اس کے لیے کتنی خاص تھی، جو اس کی ایک ایک جنبش میں اپنے لیے کوئی جذبہ، کوئی اشارہ تلاشتا رہتا تھا۔ جذبات میں بہتا بے ساختہ اس کی پیشانی چوم گیا۔ اگلے ہی پل پورا کمبل میں گھس کر کروٹ بدل گیا۔ آہستگی سے کروٹ بدل کر خولا نے بھی اپنا چہرہ لحاف میں چھپا لیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ لحاف کے اندر اس کا چہرہ سرخ ٹماٹر ہو رہا تھا۔ کچی پکی نیند میں بغیر آنکھیں کھولے پیارا سا مسکرائی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ لمس خواب تھا یا حقیقت، پھر بھی وہ داؤد سے کترا رہی تھی۔ خود داؤد بھی اسے نظریں چراتا پھر رہا تھا۔ اس وقت جب خولا نے ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی، دونوں کی نظریں چار ہو گئیں۔ کچھ لوگوں کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ایسی بڑی بڑی عمارتیں کھنڈر بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ماحول کچھ نارمل کرنے کو وہ روانی میں بے تکا بولی تھی، ہاں بالکل ٹھیک۔ بنا اس کی بات سمجھے داؤد غائب دماغی سے اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ پھر وہ کام کے لیے نکل گیا۔ نہیں سومیا باجی، میں نہیں آ پاؤں گی۔ مصنوعی خوش اخلاقی سے معذرت کرتی سخت کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ میری اور رجیا کی بھی شادی ہوئی ہے، تمہاری طرح ہم میکے کو بھول تو نہیں گئے، اور مجھے لگتا ہے کہ پارٹیوں کے علاوہ آپ دونوں کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کا سسرال بھی ہے۔ خولا سوچ کے رہ گئی۔ امارا بیگم سے پتہ چلتا رہتا تھا کہ دونوں ہی ہر وقت مائکے میں ڈیرا ڈالے بیٹھی رہتی تھیں۔ اجیا کا سسرال نیا تھا، سو وہ لوگ نئے نئے کا صبر کر رہے تھے، مگر سومیا کے سسرال سے شکایتیں آتی رہتی تھیں، تم آ رہی ہو اور بس آ رہی ہو، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ گاڑی بھیجواؤں گی میں 8 بجے تک، داؤد بھائی کو بھی ضرور لانا۔ قطعیت سے کہہ کر وہ کال کاٹ چکی تھی۔ اب یہ نئی مصیبت، نہیں جانا مطلب نہیں جانا، کوئی زبردستی ہے؟ گاڑی بھیجوا دوں گی، ہاں۔ سومیا کے سسرال والوں کے سامنے ہمیشہ احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتی تھی۔ اب تو احساس اور بھی جڑ پکڑ چکا تھا۔ نہ جانے کا اٹل فیصلہ کرتی گھر کے روز مرہ کے کام کاج میں لگ گئی تھی، لیکن 6:45 بجے اس کا دل بے ایمان ہونے لگا۔
बरी के तो सारे सूट वगैरह दाऊद वापस करवा चुका था कि इन पर अरबाज की छाप थी। जहेज़ का सबसे खूबसूरत लिबास निकालती वो इस जाऊं या ना जाऊं की कश्मकश से बाहर निकल चुकी थी। मेरी शादी में जो भी हुआ सबके सामने था, कब तक छुपूंगी, चली जाती हूँ। दाऊद को कॉल की, इसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था। इसे मैसेज के ज़रिए अपने जाने का बताकर वो इसे वापस आने तक अपने दोस्त, जिसकी दुकान नज़दीक ही थी, उसकी दुकान पर इंतज़ार करने का कहकर मुतमईन हो गई थी। पार्टी इसकी तवक्को के मुताबिक बोर थी और अब इसे अपने यहाँ आने के फ़ैसले पर पछतावा हो रहा था। अब मारा बेगम पार्टी में मौजूद थी, लेकिन खावर खौला का भाई के बुखार के बाइस आने से रह गई थी। वो बेजार सी सफ़ेद चमड़ी और गोल्डन बालों वाली दो आंटियों को एक दूसरे की गाल से गाल मस्कलते देख रही थी जब सौम्या की नंद परेशान से इसके करीब चली आई थी। खौला जी। वो इनके अंदाज पर परेशान हो गई। वो वेटर दाऊद है ना, तुम्हारा शौहर? चौंक कर इसने अपनी नज़रें उनकी नज़रों के ताकों में घुमाई थी। सौम्या वहाँ सबको बताती फिर रही है। मुझे? वो और भी जाने क्या क्या कह रही थी, मगर सुन होते असाब और सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ वो इसे देखती रह गई थी, जो वेटर की मखसूस यूनिफॉर्म में भी वहाँ मौजूद बहुत से लोगों से अच्छा लग रहा था, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा था, मगर वो वेटर के लिबास में था। खुद को घसीटती सौम्या की नंद को नज़रअंदाज करती दाऊद की तरफ बढ़ती चली गई थी। उसका सर झुकता चला गया था और आंखें भीगती चली गई थी। हर कोई इसे खुद को घूरता महसूस हो रहा था। दाऊद! जानी पहचानी सी पुकार पर वो जो टेबल पर प्लेटें लगा रहा था चौंक के पलटा था। सिर्फ एक लम्हे को इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। फिर इसके हाल पर गौर करता वो भी सूरत-ए-हाल समझ चुका था। एक नज़र लोगों पे डाल के वो लब भींच गया था। बहुत से लोग इसे अपनी तरफ मुतवज्जा महसूस हुए थे। अभी और इसी वक्त यहाँ से चलें, इससे पहले कि मैं कोई तमाशा लगा दूँ। ठंडे ठार लहजे में बोलती दाऊद को फिक्रमंद कर गई थी। खौला मैं खुदकुशी कर बैठूंगी या कत्ल कर दूंगी किसी का। इसकी बात काटती भींची आवाज़ में चीखी थी। कुछ लम्हे वो हैरत से इसे देखता रहा। हैरत की जगह हमदर्दी ने ले ली। आओ। वो इसकी हालत देखते हुए इसके शानों गिर्द बाजू फैलाता इसे सहारा देना चाहता था, मगर झटके से इसका बाजू हटाती खौला हाल के दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। कुछ देर खाली सा दिल लिए खड़ा दाऊद भी मरे मरे कदम उठाता दरवाजे की तरफ चला गया। मोटरसाइकिल पर इससे कदरे फासले पर बैठी खौला की आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। कितने ही आंसू गाल पर लुढ़कने से पहले हवाओं के साथ उड़ते चले गए थे। घर करीब आता जा रहा था। गंदी संदी बदबूदार गली को खौला ने नफरत से देखा था। दाऊद की बाइक खड़ी करने से पहले आनन फानन दरवाज़ा खोल के अंदर चली गई थी। झुके कंधों के साथ जब वो अंदर दाखिल हुआ तो खौला कुछ दिन पहले ही लाए गए सदाबहार फूलों के गमले उठा उठा के ज़मीन पर पूरी कुव्वत से मार रही थी। खौला! नाम इसके लबों पे फड़फड़ा के रह गया। इसने खौला की आंखों में अपने लिए शदीद नागवारी देखी थी। क्यों शादी की थी आपने मुझसे? आखिर क्यों? लोग तब भी बातें बनाते, लोग अब भी बातें बना रहे हैं। आप ना करते मुझसे शादी तो मैं अब तक संभल भी चुकी होती। कम से कम अम्मी की पनाह ही होती। अम्मी मेरी ढाल बन जाती। किसी की मेरे सामने कुछ कहने की हिम्मत ना होती। अब मुझे मुंह पे बातें सुननी पड़ती हैं। आगे भी पता नहीं कितनी सुननी पड़ेंगी। मुझे बताएं जब आपकी ये दो कौड़ी की औकात थी, क्यों की मुझसे शादी? क्यों मेरे रोज़ रोज़ शर्मिंदा होने का सामान कर दिया? क्यों मेरे एहसास कमतरी को बढ़ाने का सामान कर दिया? मुझे इस वक्त कितनी नफ़रत से हो रही है आपसे, मैं बता नहीं सकती आपको। सारे गुस्से की आग बुझ गई थी। दिल और जहन का सारा गुबार धुल गया था जब भड़कते चीखते इसने खामोश खड़े दाऊद के गाल पर एक खामोश आंसू लुढ़कता हुआ देखा था। दूसरी आंख से आंसू निकलने से पहले आंखें मसल चुका था। आहिस्तगी से सर हिलाता खामोशी से बाहर निकल गया था, जबकि भाड़ सा खुला दरवाज़ा बंद होने की कड़ी आवाज़ पर वो जैसे होश में आई थी। दाऊद! बिल्कुल दाऊद ही की तरह इसके भी होंठों पर बेआवाज़ नाम फड़फड़ाया था। ये रो भी सकते हैं। मैंने इन्हें रुला दिया। बेयकीन से उखड़ो होकर ज़मीन पे बैठ गई। काफ़ी देर तक जब दिमाग में कुछ नहीं आया तो सहन का बिखरावा समेटने लगी। अभी आ जाएंगे, मैं माफ़ी मांग लूँगी, वो माफ़ कर देंगे। मेरी तरह नहीं है वो। खुद को मुतमईन करते इसकी आंखें मुसलसल बरस रही थी। फ़ोन की मुसलसल बजती घंटी पर वो तेज़ी से दौड़ती हुई आई थी। 3 दिनों से वो यूं ही हर दस्तक पर, हर घंटी पर भागी भागी फिरती थी कि शायद इसे इनका ही एहसास हो जाए। शायद अपनी आज तक की अपनी महरूमियों पर शिकवे करने को ही वो इनसे रब्ता कर ले। लेकिन दाऊद! कैसी बेकरारी थी उनके लहजे में।
करीब ही बैठे अखबार पढ़ते सुभान सईद ने नज़रें चुराई थीं। उठकर कमरे से ही चले गए। मैं अरबाज। दूसरी तरफ मौजूद अरबाज उनके अंदाज पर कुछ लम्हे को चुप सा रह गया था। अपना नाम बताते वक्त इसे अजीब सी शर्मिंदगी हुई थी। अरबाज। जवेरिया बेगम ने गर्दन घुमा कर देखा। सुभान सईद मौजूद नहीं थे। कैसे हो? ठीक। और बहू? वो भी। उनका एनी को बहू कहना अरबाज को न जाने क्यों अच्छा लगा था। तुम घर क्यों नहीं आते? इन्हें दाऊद बहुत याद आ रहा था। यह एहसास परेशान रखता था। वो शायद इनसे भी नाराज़ है जो इनसे भी राब्ता तोड़े बैठा है। माँ इसका बेशतर वक्त घर से बाहर गुजरता था। इन्हें अपनी ममता की तस्कीन करनी थी। उनकी आवाज़ में कुछ था कि अरबाज कन्फ्यूज सा हो गया था। ऐसे लाड भरे गिले शिकवे का रिश्ता कब था उनके दरमियान? अब्बा नाराज़ हैं तो तुम मनाते क्यों नहीं? वो फ़ोन ही नहीं उठाते या मेरी आवाज़ सुनते के साथ ही बंद कर देते हैं। जवेरिया बेगम जितनी रवानी से सवाल पूछ रही थी वो इतना ही अटक कटक के जवाब दे रहा था। वो तुम्हारे अब्बा हैं। तुम्हारी हरकत भी कोई मामूली नहीं थी और तुम इन्हें फ़ोन पर मना रहे हो 1 महीने से। उनके झड़कने पर बस खिफ़त ज़दा सा हंस दिया। आ जाओ घर, मना लो उन्हें, वो मान जाएंगे। उनका अंदाज़ यकीन दिलाता हुआ था। वो मुझे जूते ना लगा दें। अरबाज ने खदशा जाहिर किया। लो भला, पहली बार खाओगे कोई? उनके अंदाज़ पर बेसाख्ता हंस दिया था। खुद साख्ता आना और ज़िद टूटने लगी थी। वो बाप से बात करने को बेकरार था तो वो भी बेटे की याद में बेहाल थी। नहीं मतलब एनी के सामने? बेशक तुम किसी के मिजाजी खुदा बन गए हो मगर वो अब भी तुम्हारे बाप ही हैं। तुम बाप बन जाओगे तब भी बाप ही रहेंगे। ज़िद्दें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं अरबाज। लौट आओ इससे पहले कि उनकी नाराज़गी ज़िद में बदल जाए। लौट आओ। जवाबन वो कितनी देर तक चुप रहा था। दाऊद आ गया। तवील खामोशी के बाद इसने कहा भी तो क्या, नहीं आया। तुम भी मत आना। माँ को भी चाहिए छोड़ जाए हमें। आजकल की औलाद माँ बाप से बदले लेती है, ज़िद लगाती है, रुलाती है तो खुश रहती है। रहो तुम लोग खुश, हम जाएं भाड़ में। बुरी तरह भड़कती फ़ोन क्रेडल पर रखकर पलटी थी और पीछे खड़े सुभान सईद को देखकर एक लम्हे को चौंकी थी। पता नहीं वो कब वहाँ आ खड़े हुए थे। शिकवा कना नज़रों से इन्हें देखती वो लाउंज से बाहर निकलती चली गई थी। बेड पर सुकड़ी लेटी बेजारी से अपने मोबाइल का मुसलसल चमकता स्क्रीन देख रही थी। कॉल करने वाली शख्सियत महा ढीठ थी जो 3 दिनों से लगातार कॉल पे कॉल कर रही थी। एक बार फिर से इसने ऑफ करने की नीयत से फ़ोन उठाया था, फिर कुछ सोचकर कॉल रिसीव कर ली मगर बोली कुछ नहीं। हेलो खौला। खामोशी। खौला ये तुम ही हो? नागवार खामोशी। तुम हो ना खौला? आपने कॉल मेरे नंबर पर की है, जाहिर है मैं ही हूँ। हलक फाड़ के बोलती वो सौम्या को मोबाइल कान से हटाने पर मजबूर कर गई थी। देखो मेरी बात मुकम्मल करने से पहले कॉल नहीं काटना। यकीन करो मेरा कोई कसूर नहीं। तुम्हारी शादी में मेरे बहुत से ससुराली भी शामिल थे। दाऊद भाई को कय्यूम की किसी कज़न ने देख के पहचान लिया था। फिर मुझसे जब पूछा तो मैं इनकार नहीं कर सकी। बस फिर ये बात फैलती चली गई। मुझे खुद से क्या ज़रूरत पड़ी थी ये बात फैलाने की? मैं तो खुद इतना शर्मिंदा हुई थी दाऊद भाई को वेटर बना देखकर। एक्सक्यूज़ मी, क्यों शर्मिंदा हुई थी आप? वो वहाँ वेटर थे, चोरी करते तो नहीं पकड़े गए थे जो आप शर्मिंदा हो गई थी? जिस बात पर इसने खुद कयामत उठा दी थी अब उसी का दफा कर रही थी। हाँ हाँ मैं मानती हूँ। सौम्या कुछ गड़बड़ाई, पर तुम प्लीज़ कय्यूम को, सौम्या के शौहर को कॉल करके कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। इतनी सुनाई है मुझे और उखड़े उखड़े भी हैं, हालांकि मेरी कोई गलती भी नहीं। मैं कय्यूम भाई को कॉल करके ये सब क्यों कहूँ? मैंने आपको माफ़ भी नहीं किया और तब तक नहीं करूँगी जब तक दाऊद वापस नहीं आ जाते। कय्यूम भाई आपसे जो उखड़े उखड़े हैं ना, आपकी गर्दन उखेड़ दें तो और भी अच्छा हो। और ये कज़न वाली कहानी इसे सुनाइए जो आपकी कुटनियों वाली फितरत जानता ना हो। आपसे खौला के हुड़कने पर वो बुरी तरह तिल मिलाती सौम्या खुद ही कॉल काट चुकी थी। हाँ, कज़न ने देखकर पूछ लिया। फ़ोन कान से हटाती धप से बेड पर वापस गिरी थी। कय्यूम भाई कितने अच्छे इंसान हैं, हर किसी का दर्द समझने वाले, हर किसी की मदद को तैयार। पता नहीं क्या नेकी की थी सौम्या बाजी ने जो इन्हें कय्यूम भाई जैसा मियाँ मिला। शायद कय्यूम भाई ने कुछ ज़्यादा ही सुना डाली। ऐसे ही तो 3 दिन से मेरी मिन्नतें नहीं कर रही। अच्छा है कय्यूम भाई नाराज़ रहें, कुछ तो कदर होगी सौम्या बाजी को उनकी। वरना कभी जो एहसास किया अपने शौहर का। तेज़ तेज़ पैर हिलाती बुड़बुड़ाती एकदम साकित हुई थी। मैंने खुद कब अपने शौहर की कदर की थी? मुझे क्या हक पहुँचता है मैं इस मामले में सौम्या बाजी को कुछ कहूँ? नादिम सी होती फिर रोने का शुगल शुरू कर चुकी थी।
کتنے اچھے ہیں وہ، کتنا برا کیا میں نے۔ اب اگر وہ مجھے کچرا چنتے بھی نظر آئے، خدا نخواستہ، تو میں خود ان کے ساتھ لگ جاؤں گی۔ یہ ارادہ وہ داؤد کے غائب ہونے کے 3 دن میں 300 بار کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد نڈھال سی جویریہ بیگم خاموشی سے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شرمندہ سی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ ان سے نظریں ملانا اس کے لیے بہت دشوار تھا۔ آنکھیں پلو سے رگڑتے اس کی نظریں نہیں، سر بھی جھکا ہوا تھا۔ تم مجھ سے شرمندہ ہو رہی ہو؟ کیوں؟ تمہارے لیے بالکل اجنبی تھا، بالکل اچانک قدرت نے اس کا تعلق تم سے جوڑ دیا تھا۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ اسے سمجھنے میں، اسے دل سے قبول کرنے میں تمہیں کچھ وقت لگنا تھا۔ قصوروار تو میں ہوں۔ اسے پیدا کیا میں نے، 9 ماہ وہ میرے جسم کا حصہ بنا رہا۔ ایک ماں کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور میں نے اپنی اولاد کو سب سے بعد میں رکھا۔ اگر آپ انہیں الگ کرنے کا فیصلہ نہ کرتی، کس حال میں ہوتے؟ ان کی شخصیت کیا ہوتی؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوتے، ان کے پاس آسائشات کی کمی بھی نہ ہوتی، مگر وہ خود کیا ہوتے؟ ایک بزدل، کونوں خدروں میں چھپے رہنے والا شخص، جس سے حقلائے بغیر بات نہ کی جاتی، جو سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھ کر بات تک نہ کر سکتا۔ وہ دنگ ہوئی تھی۔ 2 سال سبحان سعید کے گھر رکھ کر 8 سال کی عمر میں داؤد کو واپس اس کے باپ کے گھر نانی کے ساتھ چھوڑتے ہوئے ان کے دل میں یہی تو اندیشے تھے۔ سبحان صاحب ہرگز ظالم نہیں تھے، مگر وہ ایک کانوں کے کچے اور غصے کے تیز شخص تھے۔ ان کی والدہ جو مزاج میں ان سے زیادہ گرم تھی، جویریہ بیگم سے وعدہ تو کر چکی تھی داؤد کو رکھنے کا، مگر انہیں ہر وقت یہ دھڑکا رہتا کہ داؤد ان کے اپنے پوتے ارباز کا حق چھین لے گا۔ جویریہ بیگم داؤد کے ہوتے ارباز کا خیال نہیں رکھیں گی، سو کچھ گھریلو سیاست کرنے لگی، جس سے سبحان صاحب کا پارا ہائی ہو جاتا۔ وہ داؤد پہ بھڑکتے اور داؤد کا اعتماد ختم ہوتا جاتا۔ داؤد اس ڈانٹ ڈپٹ سے ویسے ہی بن گیا تھا جیسا نقشہ خولہ نے ابھی کھینچا تھا۔ یہی حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے داؤد کو خود سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر یہ سب خولہ کو کیسے معلوم؟ ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرائی۔ مجھے داؤد نے بتایا تھا، اسی لیے انہوں نے آپ سے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا۔ وہ آپ کی مجبوری سمجھ سکتے تھے، آپ نے وہ کیا جو ان کے لیے بہتر لگا۔ وہ سب سمجھتا تھا؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، تو واپس کیوں نہیں آ رہا؟ مجھ سے کیوں چھپ کے بیٹھا ہے؟ ان کے انداز میں بے اعتباری تھی، کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ خولہ کا انداز مجرمانہ تھا، پتہ ہے آنٹی؟ جب میں نے ان کے گھر میں قدم رکھا تھا نا، انہوں نے مجھے تب ہی کہہ دیا تھا، اس گھر کے در و دیوار کے آگے ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہنا، اور میں نے انہیں ان در و دیوار کے سامنے رلا دیا۔ کتنی بری ہوں میں، کتنی بری۔ میری نظروں سے وہ لمحہ نہیں جاتا جب میں نے ان کے آنسو دیکھے تھے۔ ایک ہنستے مسکراتے شخص کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، جبکہ آنسوؤں کی وجہ بھی آپ ہوں۔ مجھے بس وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، اس سے آگے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ رونے میں شدت آ گئی تھی، حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ وہ اسے اتنا یاد آ رہا تھا کہ اسے خود پہ حیرت تھی، اتنی محبت تھی اس کے دل میں داؤد کے لیے، وہ کیسے نہیں سمجھ سکی۔ وہ صرف تم سے ناراض ہوتا تو صرف تم سے دور ہوتا، میں جانتی ہوں، بغیر احساس دلائے مجھے بھی سزا دینا چاہتا ہے۔ خولہ کی پشت سہلاتے انہوں نے پر یقین انداز میں کہا تھا۔ کپڑے پیک کرتے وقت وہ ماضی کے ان لمحوں میں بھٹک رہی تھی جب وہ ارباز سے ملی تھی۔ وہ بینک میں نہیں تھی، کافی بے وقوف بھی مشہور ہو گئی تھی، کچھ وہ ویسی سیدھی سادی تھی، کچھ ماں کی اچانک موت نے بے دم سا کر رکھا تھا۔ باپ تو بچپن میں ہی دنیا چھوڑ گیا تھا، نہ کوئی بہن، نہ بھائی، نہ کوئی قریبی عزیز، چند دور دور کے رشتہ دار تھے جو دور دور ہی تھے۔ اس وقت ارباز جو اس کا کلیگ تھا، اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ کچھ زیادہ ہی خیال وہ اس لیے بھی اس کا رکھتا تھا کہ وہ بھی ماں کے چھوڑ جانے کے غم سے واقف تھا، لیکن سیدھی سی عینی نے نہ جانے کیا کیا خواب سجا لیے تھے۔ اس وقت اس کے خوابوں کا محل مسمار ہوا جب ارباز اپنی شادی کا کارڈ لے کر آیا تھا۔ ارباز کے دل میں کچھ تھا یا نہیں، لیکن وہ عینی کے دل کی بات سے یقینی طور پر ناواقف نہیں تھا، تبھی شاید شادی کا کارڈ اس کی طرف بڑھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ اور پھر عینی کہاں گم ہو؟ چونک کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتا ارباز اب حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کب سے وہ ایک شرٹ تھامے سوچوں میں گم کھڑی تھی، روشن نظروں سے اس کا وجیح چہرہ تکتی بے ساختہ مسکرائی تھی۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ اس وقت سب سے بڑی خوبصورت سچائی کوئی نہیں کہ ارباز اس کے قریب تھا، اس کا محرم تھا، اور اس سے محبت کا دعوے دار بھی تھا۔ دل ہی دل میں وہ جیسے گنگنائی تھی، کیا بہت اچھا لگ رہا ہوں؟ اس کے یک ٹک دیکھنے پر ارباز نے شوقی سے پوچھا تھا۔ ہمیشہ لگتے ہو۔
اس کے بے ساختہ کہنے پر ارباز نے اترا کر بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اب بتا دو کیا سوچ رہی تھی؟ یہی کہ کیا انکل مجھے بہو قبول کر لیں گے؟ او فینی، یہ ممکن ہے، مجھے معاف نہ کریں، تم گھر کی عزت ہو، تمہیں ضرور قبول کر لیں گے، بلکہ 80% چانسز ہیں کہ وہ مجھے جوتے لگا لگا کر باہر نکال پھینکیں، تمہیں وہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ مگر میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس کے پریشانی سے کہنے پر بے ساختہ ہنستا چلا گیا تھا۔ پگلی۔ شور شرابے کی آواز پر وہ جو کسی خوش گمانی کا شکار ہوتی کمرے سے بھاگتی گیلری میں آئی تھی، نیچے ارباز کی درگت بنتے دیکھ کے منہ بنا کے رہ گئی۔ نکل، میرے گھر سے نکل، نالائق، احسان فراموش، گدھا، تو نکلے گا یا میں اتاروں جوتی؟ ابا، بیوی کے سامنے باپ سے مار کھاتے شرم آ رہی ہے؟ اور باپ کو جو اتنا میں شرمندہ کرا کے رکھ دیا تو نے کمینے۔ میں مانتا ہوں، ماننے گا تو تیرا باپ بھی۔ میں تیرے معافی مانگنے سے کیا لوگ باتیں بنانا چھوڑ دیں گے؟ ابا، ایک مہینہ ہو کیا، یہ 1 صدی بیت جائے، میں نے تیری شکل نہ دیکھنی ہے نہ دیکھوں گا۔ اور وہ جوتی لیا ارباز کے پیچھے بھاگتے اس بیچارے کو بات مکمل کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہے تھے۔ تاک تاک کے نشانے لیتے وہ اس کی پشت یقیناً لال کر چکے تھے۔ ساتھ ساتھ بھاگتا معاذ ان کے حکم پر انہیں ان کی جوتی اٹھا اٹھا کے پکڑاتا رہتا۔ ابا، میری بات تو سنیں ابا۔ ہونک کھڑی عینی کو ہوش آ ہی گیا۔ سبحان سعید کے سامنے آتی وہ انہیں رک جانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی چپل زمین پر پھینک کر انہوں نے غصے سے پیر میں اڑس لی تھی۔ حیرت سے منظر دیکھتی خولہ نیچے اتر آئی تھی۔ نظریں جویریہ بیگم معاذ کے چہروں پر پڑی تو اور بھی حیران ہوئی۔ دونوں ہی بجائے پریشان ہونے کے ہنسی روکنے کے چکر میں بے حال تھے۔ ارباز کی کوئی غلطی نہیں ہے، سارا قصور میرا تھا، میں اس کے پیچھے پڑی تھی، وہ صرف میرا ایک دوست کی طرح خیال رکھتا تھا، میں ہی الٹا سیدھا سوچنے لگی تھی۔ ارباز کی شادی والی رات میں نے سوسائڈ کی کوشش کی تھی، اگر ارباز نہ آتا تو میں مر جاتی، جو ہوا میری وجہ سے ہوا۔ ارباز سے دور کرنے کے علاوہ مجھے جو بھی سزا دیں گے مجھے قبول ہے۔ ان کے مزاج کو دیکھتے وہ سارا ماجرا ایک ہی سانس میں سنا گئی تھی۔ کچھ پل خاموشی سے ان دونوں کے چہرے جانچنے کے بعد سبحان سعید گویا ہوئے تھے۔ ارباز سے الگ کرنے کے علاوہ جو بھی سزا؟ جی، عینی چہکی تھی، جبکہ ارباز چوکنا ہوا تھا۔ تو پھر دونوں ایک ساتھ میرے گھر سے نکل جاؤ، آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ آخری جملہ بطور خاص بیٹے کو دیکھ کے ادا کیا تھا۔ یہ کیسی معافی ہوئی؟ وہ ٹھنکا۔ جیسی میری مرضی۔ ابا، اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، لوگوں کا تو کام ہے بولنا، کیا خاک ٹھیک ہو گیا؟ اس بچی کو دیکھو۔ ان کے اشارے پر سب کی منڈیاں اپنی طرح مڑتی دیکھ کر خولہ سٹپٹا گئی۔ ایک تجھ نالائق نے جو کیا وہ کم تھا، جو وہ دوسرا نالائق بھی بچی کا تماشا بنانے پہ تلا ہے، اس کا سوچا کبھی؟ یہ اونچے گھرانے کی بچی، اسے کیسی شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی اپنے شوہر کو معمولی ویٹر۔ یوں مت کہیں انکل، وہ تڑپ اٹھی تھی، آنکھوں سے پھر ایک جھڑی سی نکلی تھی۔ وہ تو ایسا ہے کہ اس کے ساتھ لمحہ بھر کو چلنے والوں کو بھی خود پہ فخر ہوتا ہوگا۔ گھر کے پچھلی طرف سے اندر داخل ہوتا داؤد خولہ کی بات سن کے ساکت رہ گیا تھا۔ میں ہی ناشکری کرتی رہی تھی، میں سوچے گھر کے نچلے درجے کی باسی تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے سے گھر بہت بڑے دل میں مجھے سب سے اونچی مسند پہ بٹھایا تھا، مگر میں احساس کمتری کی ماری یقیناً اتنی عزت اتنی محبت کے قابل نہیں تھی۔ جذبات کی رو میں بہتی نہ جانے اور بھی کتنے خوبصورت اظہار کر جاتی، لیکن یکدم گمسم سی ہو کر کسی احساس میں گھرتی چونک کے مڑی تھی۔ داؤد جو گھر کی پچھلی طرف سے داخل ہوا تھا اب دھڑکتے دل کے ساتھ دیوار کے عقب میں چھپا چہرہ نکالے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے مڑنے پر بڑا پیارا سا مسکرایا تھا۔ کبھی منہ پر بھی ایسے اظہار کر دیا کرو ظالم لڑکی۔ اتنے دنوں بعد اچانک اپنے سامنے دیکھ کر سکتے میں آتی وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکی تھی۔ خالہ کی اس طرح یک ٹک دیکھنے پر اس بار داؤد نے پوز مارنے کی غلطی نہیں کی تھی، ذرا سا جھک کر ہاتھ لہرا کے بڑی ادا سے آداب کیا تھا۔ آداب کے بچے! جویریہ بیگم بھاگتی آئی تھی اور اس کے قریب پہنچ کر اس کے گال پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ ایسے کوئی کرتا ہے؟ نہ آتا نہ پتہ، منہ اٹھائے اور چل دیے۔ پتہ ہے حالات کیسے کیسے وہم دل میں اٹھ رہے تھے، کچھ کرنے کے نہیں رہے تھے ہم، جان آدھی کر کے رکھ دی تھی ہماری۔ اب وہ اپنا منہ ہاتھوں میں چھپائے سسکنے لگی تھی۔ اماں، بری طرح شرمندہ ہوتے داؤد نے ان کے ہاتھوں کو تھامنا چاہا تھا، مگر نتیجتاً دوسرے گال پر بھی تھپڑ کھا بیٹھا۔ مگر اس بار تھپڑ لگاتے ساتھ ہی وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔
यूँ भी कोई करता है? कहाँ गया था तू? इसकी पेशानी चूमते उन्होंने गलोगीर लहजे में पूछा था। मास के दोस्त के घर ठहरा था। एक नज़र सीढ़ियों से ऊपर जाती ख्वाला को देखकर इसने बताया था, मास तो सारा दिन साथ होता था मेरे। इस इंकशाफ पर सबकी गर्दनें मास की तरफ घूमी। हैरत सी हैरत थी, लेकिन जवेरिया बेगम ने सिर्फ गर्दन घुमाने पर इक्तफा नहीं किया था, उड़ा की चप्पल भी रसीद की थी। माँ की चप्पल का निशाना कभी ख़ता हुआ है? सो मास कंधे पर पड़ने वाली चप्पल पर चिल्ला भी नहीं सका। दूसरी भी उड़ती आई थी। अब मास चप्पल खा रहा था और जवेरिया बेगम पीछे पीछे भागती मार रही थी, और अरबाज बगैर उनके कहे चप्पल उठा उठा के देने का फरीज़ा निभा रहा था। ए लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो? हैरत से सारा मंजर मुलाहिजा करते सुबहान सईद ने जो इसे दबे कदमों ऊपर जाते देखा तो वो चौंके। अपनी बीवी को मनाने, सीना फुला कर कहता दाऊद तरंग में इस बार धड़ धड़ सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर भागा था, जबकि सुबहान सईद सर झटकते अब इन सब पे दहाड़े थे। क्या तमाशा है ये? सब अपनी जगह साकित हुए थे। मास की माँ, तुम जाओ, डिनर का इंतज़ाम करो। इनके दिमाग तो मैं ठिकाने लगाता हूँ। दोनों भाइयों ने सहम के एक दूसरे को देखा था, जबकि ऐनी मिनमिनाई थी। ये तो बता दें अब्बा, आपने माफ़ कर दिया? खौला दाऊद को माफ़ कर दे तो मैं भी तुम लोगों को माफ़ कर दूंगा। हाथ पोस्ट पर बांधते उन्होंने फैसला सुनाया था, जबकि खौला की बातें याद आने पर अरबाज और ऐनी तो मुतमईन से हो गए थे। खौला कब नाराज़ थी? वो तो खुद शर्मिंदा सी दाऊद की मुंतज़िर थी, जबकि किचन में खादमाओं के साथ मसरूफ़ जवेरिया बेगम की फुर्ती और खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। चंद दिनों की एक्स्ट्रा परेशानियों के बाद सारी ज़िंदगी की परेशानियां ख़त्म होती लग रही थी। दाऊद को चिकन पुलाव बहुत पसंद है, साथ पुदीने का रायता। अरबाज को आलू कीमा और मांस। इसका तो मैं ख़ुद कीमा बनाऊंगी। कोई नाराज़ है? कमरे में दाखिल होता वो डलते डलते बोला था, जी आप। लटके मुंह के साथ खौला मिनमिनाई थी, मेरी इतनी मजाल है? इससे जुड़कर बैठते दाऊद ने लहजे में मज़लूमियत भरी थी, आपकी इतनी तो मजाल है कि आप मुझे अकेले घर में छोड़कर चलते बने? और तुम इतनी बदगुमान हो, एक बार दरवाजे से झांक कर भी नहीं देखा, दरवाजे की कुंडी लगा ली। सारी रात बाहर खड़ा सर्दी से जमता रहा मैं। शायद तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, सुबह बात कर लूँगा। ये सोचकर मैंने भी दस्तक नहीं दी। इस इंकशाफ पर वो दंग हुई थी। मगर सुबह तो मास कह रहा था कि आपने रात को इसे मैसेज किया था कि मैं जवेरिया आंटी के घर चली जाऊँ। आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मुसीबत की तरह नाजिल हुई हूँ मैं आपकी ज़िंदगी में। वो दुपट्टे से नाक रगड़ती, लम्हा याद करती रोने को हो गई थी। ये सब कहा था इसने? दाऊद की आंखें फैल गई थीं। खौला ने ज़ोर और शोर से इस बात में सर हिलाया। इस सुबह वो किसी काम से घर आया था, मुझे बाहर बैठा देख के वजह पूछी, मैंने बता दी। फिर हमने प्लान बनाया कि मैं हफ्ता भर गायब रहूँगा, फिर हम देखेंगे तुम्हें मैं याद आता हूँ या तुम खुशियाँ मनाती हो। और फिर हमने देखा तुमने तो 3 दिन में ही आंसुओं से कुएं भर दिए। अम्मा को इसलिए नहीं बताया, बहुत इमोशनल है। तुम्हें रोता देख के फ़ौरन सच बता देती। हाँ, मारा आंटी और कुंवर खावर को सब पता था, ताकि वो किसी गलत फहमी का शिकार होकर तुम्हें यहाँ से ले ना जाए। इंकशाफ दर इंकशाफ। वो दंग रह गई। वाकई? हाँ वाकई। इस रात आप सर्दी में बाहर खड़े रहे। मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी, तुम मुझे माफ़ कर दो। उस बात पर माफ़ी मत मांगे जहाँ गलती मेरी है, वरना मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा कभी। मैं नाशुक्री हूँ। आपने ठीक कहा था, जो हासिल है इस पर शुक्र नहीं करती, दूसरों से हसद करती हूँ बस। यह आदत जाने में कुछ वक्त लगेगा, मैं शुक्र करना सीख जाऊँगी। तब तक शायद मैं फिर आपकी दिल आज़ारी कर बैठूँ। आप आइंदा मुझे डांट दीजिएगा, थप्पड़ की भी इजाज़त है अगर बदतमीज़ी ज़्यादा हो तो, मगर ऐसी सज़ा मत दीजिएगा। चेहरा हाथों में छुपाए सर इसके सीने से लगाए वो मिन्नती अंदाज में बोल रही थी। इसके बालों में नरमी से हाथ चलाता दाऊद ख़ुद को इस वक्त दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स तस्वर कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर बैठी जवेरिया बेगम का बस नहीं चल रहा था एक एक के मुंह में अपने हाथों से निवाले ठूंसे। उनके खुशी से चमकते चेहरे को देखते सुबहान सईद ज़ेरे लब मुस्कुराए थे। अभी अरबाज के वलीमे की भी तैयारी करनी है। सुबहान सईद अपने आप से बोले। ऐनी खुद में सिमटी। सारा बरी का सामान रखा है और वलीमे का जोड़ा वही गोल्डन वाला, इतना खूब। एक मिनट। अरबाज हाथ उठाकर जवेरिया बेगम को मज़ीद कुछ कहने से रोक गया। वो खौला की नीयत से आया था, खौला को ही दें इस पर। एक मिनट। इस बार दाऊद ने अरबाज की बात काटी।
वो तुम्हारी दुल्हन की नीयत से आया था, इस पर ऐनी का ही हक है। आपस में लड़ने मत लगना। जवेरिया बेगम को खौफ हुआ। ना तुम लेने को तैयार हो और ना तुम। इतना कीमती सामान है, क्या करूं मैं इसका? मेरी वाली के लिए रख लें। मास चहका। तुम्हारी वाली न जाने कब आएगी। जवेरिया बेगम हंसी। क्या मतलब कब आएगी? आप इजाज़त दें, अभी आ जाएगी। कहते के साथ ही माज ने ज़ुबान दांतों तले दबाकर गड़बड़ाते हुए कीनातोज़ नज़रों से खुद को घूरते बाप को देखा था। कौन है वो? मैं बताता हूँ। दाऊद और अरबाज एक साथ बोले थे, फिर चौंक कर एक दूसरे को देखा। वो सादिया, वो हुमैरा। इस बार दोनों ने फिर साथ बोला, मगर फिर चौंक कर माज को भी देखा, जिसका सर ही नहीं उठ रहा था। कौन सादिया? कौन हुमैरा? मैंने इसे पड़ोस वालों की दानिया के साथ मोटरसाइकिल पर उड़ते देखा है। जवेरिया बेगम के हैरत से कहने पर खौला और रैनी ने मुस्कुराहट दबाकर अपने छोटे से देवर को देखा। सबसे बड़े पर इसी के निकले। सुबहान सईद के तबसरे पर सभी की रुकी हंसी फूट पड़ी थी। वो मुतमईन सा गुनगुनाता हुआ किचन में चलाया, जहाँ जवेरिया बेगम मुलाजमीन के साथ किचन समेट रही थी। सुबहान सईद के फैसले से खुश तो बहुत था, अब खुद से वो बात इन्हें कहते झिझक रहा था। हाँ, कॉफ़ी पीनी है? मैं बस बना रही हूँ। अरबाज की रात के खाने के बाद कॉफ़ी पीने की आदत से वाकिफ़ थी, जब ही बोली, थैंक यू। दरअसल मुझे कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहो। उन्होंने मुलाजमीन को जाने का इशारा किया। आपको पता है, मेरा उन फैक्ट्रियों को संभालने में दिल नहीं लगता, इसलिए मैंने बैंक ज्वाइन किया है। हाँ, वो इस बेवक्त सी बात पे हैरान हुई थी। माज बहुत छोटा है, यूँ भी इसका ध्यान एक्टिंग की तरफ है, और अब्बा में हिम्मत नहीं रही इस भाग दौड़ की। तो आप दाऊद से कहें शराफत से फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी उठाए और बोरिया बिस्तर समेट कर इस घर में तशरीफ़ ले आए। शुरू में अटक कटक कर बोलता, आखिर में रवानी से कहता, उनके तासुरात पर झेंपता वो किचन से निकल गया। पीछे हैरान खड़ी समझी ना समझी के दौर से गुजर रही थी, जब अरबाज ने फिर किचन में झांका। और अगर वो अक्कड़ दिखाए तो इसे याद दिला दीजिएगा, मेरे आगे इसकी ना कभी पहले चली और ना अब चलेगी। एक बार फिर वो तेज़ी से पीछे हो गया था। या अल्लाह, आपका जितना शुक्र अदा करूं कम है। बात समझकर शदीद खुशी के एहसास में घिरी वो शुक्राने के नफल अदा करने गई थी। कब सोचा था आज का सूरज इस घर में इतनी खुशियां लेकर तलू हुआ था। उनका दाऊद यहाँ आ जाएगा हमेशा के लिए। हर शिकायत का अजाला कर दिया था सुबहान सईद ने। दुकानें बंद होने का सिलसिला चल पड़ा था, जिसके बाइस रोड को ज़्यादा ही अंधेरे में डूबे थे। एक बात कहूँ? गर्दन ज़रा पीछे को करता कुछ ऊंची आवाज़ में बोला था। कहिए। वो भी इसके कान में चीखी थी। कह दूँ? कह दें? सोच लो। सोच लिया। बड़ा मर्द होने का ताना तो नहीं मारोगी? ये वादा तो मैं नहीं करती। वो हंसी थी। फिर रहने दो। अच्छा नहीं कहूँगी मैं, सच में। अंदाज चिढ़ाने वाला था। खौला, आई लव यू। सरखुशी की कैफियत में हलक के बल चिल्लाया था कि ये आते जाते लोगों ने ठिठक के इस हवाओं के दोष पर उड़ती मोटरसाइकिल को देखा था। खिलते चेहरे के साथ फिर इसके कान में मुँह करके चिल्लाई थी। बहुत फजूल हैं आप। यकीनन हूँ, मोहब्बत भी की है तो अपनी बीवी से। दाऊद के मज़े से कहने पर बेसाख्ता हंसते हुए इसने इन गलियों को देखा, वही अंधेरे में डूबी बदबूदार कचरे से भरी गलियाँ। मगर इस वक्त वो ख़ुद को दाऊद की संगत में कहकशाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। ये शख्स कितना ख़ास है। ऐसी रह गुज़र भी इसकी संगत में कहकशाओं सी लगती है। चमकती नज़रों से खौला ने इसकी चौड़ी पुश्त को देखा था। दाऊद। घर करीब आता जा रहा था जब वो धीरे से बोली थी। सुनसान रास्ते की वजह से दाऊद आराम से सुन सकता था। हाँ, आई लव यू टू। मध्यम से इजहार में शदीद जज्बात थे। रुकती मोटरसाइकिल से उतरती मुंतज़र नज़रों से इसे देखने लगी थी, जो खामोश नज़रों से इसे देख रहा था। आपने कुछ कहा नहीं? इसलिए क्योंकि यह सिर्फ कहने का वक्त नहीं है। बाइक से उतर के अब दरवाज़ा खोलने लगा था। खौला को कुछ वक्त लगा था इसकी बात समझने में। फिर वो सुर्ख चेहरे के साथ इसकी पुश्त पर मुक्के रसीद करना शुरू कर चुकी थी। कितने बेशरम हैं आप। जवाब में दाऊद के जिन्नाती कहकहे ने घर के उदास होते दरो दीवार में भी ज़िंदगी सी भर दी थी। अभी तुम्हें पता ही कितना है। वो बाज नहीं आया था। सुर्ख होते चेहरे के साथ खौला भी हंसती चली गई थी। ये नावल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। फिर से आऊँगी किसी ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत से नावल के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।